where he proved it that he did a backtesting on 130 years worth of data. And there was one guy who is 40% success rate based on his or her trading style. And he has a very good risk reward and position sizing and pyramiding technique. Whereas another guy who has 80% success rate based on his or her trading style, but did not had an adequate risk reward. ये बार बार शेयरिंग स्टॉप हो जा रहा है. Not sure what is happening. Is it visible now? Yes, it's visible. Okay. So, and then based on 130 years of backtesting, he has proved it the 91% probability of the guy who has a better risk reward will win over the guy who has 80% success rate. So I cannot stress enough, you gotta have to focus on the psychology part. There's no option on that. There's no other substitute to that. When it comes to risk management, मैंने जो पिछले 2-3 सालों में जो फ्रेशर्स लोग हैं जो एंटर किए हैं उनसे जो मेरे को एक कॉमन प्रॉब्लम समझ में आई है कि they try hard, very hard for the first 1 to 2 years. Again, sharing रुक गई है, right? Sir, just 1 minute. There was some glitch. Just 1 minute. Huh? Chetan ji, now accidentally you have been the host, so you'll have to start the recording. Can you see your host name recording button and at the bottom of the screen? जी, yes. हाँ, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, record it to the cloud. So, sir, I think it's already under recording probably. So I think Yeah, it's already. okay. Yeah. So Okay. So you can share and continue, sir. Okay. So where was I? Yeah. So the people who are recently starting, look, the way I've designed this webinar is that I understand people are after the advanced price action, but for the people who do not have adequate knowledge, I don't want this session to be completely boring or ऊपर से जाने वाला session नहीं होना चाहिए. So what I've done is I've used real life examples and some keywords because the way our mind works is we have always works in a reference. So we have work like as a hook. So कहीं आप किसी जगह पे जाते हो, you have a good smell and that smell reminds you of something, some other place. कोई food आपको घर की याद दिलाता है. So mind works in a reference point of view. So I've included certain things on a different sections on this whole presentation so that the freshers, when they see that scenario happening in front of them, वो keyword will give them the whole idea of what's supposed to be done on that and that particular situation. So in terms of risk management, I would say if you are in first 3 years of your trading journey or investing journey, and you think मैंने सब कुछ try कर लिया and nothing is working, trust me, you are overestimating what you can do under 1 year, and you are basically underestimating what you can do in 10 years. So एक particular चीज पे stick करिए, उसमें deep में जाइए, width मत बनाइए, depth बनाइए, और उस पे एफर्ट डाल के फिर उसकी जो निटिग्रिटीज है वो समझिए, and then move out to the addition, then move out to addition, then move out to addition. And that's where the critical part comes up, is that if something somebody said, doesn't matter whether it's me or someone else, if it is not making sense to you, just ignore it. Don't add unnecessary things to your style of trading or investing, because after 5-10 years the things would be so complicated that आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी टेक्निक को कहाँ लगाओ, contradicting signals मिलने लगेंगे, and you will be in hell of a confusion. So don't underestimate what you can do in short term versus what you can do in long term. Last thing, power of being average. जितने भी की टॉपर्स या गुड परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे कोई भी एरिया हो लाइफ का, you will find one quality common among them is they are curious. Curiosity is the key where these people shine. So always remain humble, keep open mind, always try to keep this in mind that I do not know enough.
जब भी कोई कोई बात बता रहा है, आप उसको सुनिए, आप जज करिए, टेस्ट करिए, और काम नहीं कर रहा तो फेंक दीजिए। लेकिन अगर इस अप्रोच के साथ जाओगे कि मुझे सब आता है, या मुझे पता है, देन यू विल स्टॉप ग्रोइंग दैट डे। सो कीप दैट इन माइंड. Agar another thing which keep coming up, buzzing up in the market, and that always happens in the bull run, is fundamentals, technicals. In my humble opinion, fundamentals and technicals are overrated. Common sense and screen time is underrated. It is fairly possible, and I have proved it many times. Uh, Basic technical knowledge is more than sufficient to make money with lower risk. So you don't need to be expert or PhD holder in technical or a fundamentalist. अगर आप एक बेसिक चीज को भी होल्ड करके रखते हैं, उसके डीप में जाते हैं, चाहे वो फिर कैंडल स्टिक हो, या सिंपल प्राइस एक्शन हो, या कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर हो, या पर्टिकुलर पैटर्न हो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर लाइफ टाइम. Okay, now that the basic is covered, let's get to the business. First thing first, मैंने ये रिक्वेस्ट किया था पोल का. तरुण जी. Sir, the poll has been created in the group. Excellent. So let me just can we post that poll, please? Yeah, okay. Yeah, the poll has I can been see. put up in the Telegram group. Guys, you can vote. Okay, प्लीज वोट करिए. 30 सेकेंड हम इस पे लेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो, अदरवाइज सब ऊपर से चला जाएगा. Yeah, 30 votes. 63. How many people we have total in session? We have around 300 plus participants. Okay. 330. 49. Another 30 seconds, guys, please. 64. I think we got a fair idea. So 73% people says techno-functional expert is the one who will make money in the longer run, and that's pretty obvious. But in my humble opinion, that's wrong. It was a bit of a trick question, because I really want you guys to understand this. If you say I'm a technical expert and I'm the guy who has endless cash available in my kitty, आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस लगा लीजिए, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चार्ट पे डालिए, मैं उसे 15 सेकंड्स में ब्रेक कर दूंगा. आई कैन बाय 1 लाख की क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी अगर किसी शेयर में ट्रेड होती है, आई कैन बाय 1 करोड़ क्वांटिटी, एंड एनी डैम थिंग आई कैन ब्रेक ऑन द चार्ट. So that's not going to work. Fundamental, people think, and that's again, it's just my humble opinion, don't believe on it, that fundamental experts jo hote hai, they can go into the balance sheet and they can find the hidden gems, and they can find if the books are getting cooked. That's a financial term they use. एक चीज ये समझिए कि हो सकता है आप सीए हो, एफआरए हो, आपको फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन जो लोग बुक्स को कुक कर रहे हैं वो भी IIM के पास आउट से. तो इफ दे रियली वांट टू कुक द बुक, you wouldn't be able to find out. If you want to see last 150 years of history in US, how many scams of the company have been unearthed? Maybe less than 1%. जब स्कैम हो जाता है उसके बाद चीजें सामने आती है, कोई भी ऑडिटिंग फर्म पता नहीं कर पाती. सेकंड चीज, हमारे पास लेमन ब्रदर का क्लासिक केस है. इतना बड़ा कोलैप्स हुआ, वर्ल्ड कोलैप्स हो गया, अराउंड द वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हुए, लेकिन एंड में सजा किसे मिली? एक आई थिंक सी ग्रेड अकाउंटेंट को. सो it's not a efficient instrument where things works by rule. If you have a lot of money, a lot of power, a lot of influence, control over the news, I can turn any stock upside down.
So there is no way you can beat me in the longer run. Yes, 1 day 2 day you may be able to get a good return, but in longer run the person with lots of money is gonna win. So with that assumption aside, so basically what we're really trying to do here, what we're really doing is we are trying to, so when I say I'm doing a technical analysis, what I'm really doing is I am finding a place on a chart where I think कि बड़ा पैसा यहाँ से जाने वाला है और ये चार्ट फटेगा, मुंबई की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चार्ट फटने वाला है। तो चार्ट फटने वाले का मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू से आई फाउंड अ स्टॉक विच इज एक्सेलेंट ऑन टेक्निकल फ्रंट और यहाँ से बड़ा प्राइस एक्शन होने वाला है, बड़ा प्राइस मूवमेंट आने वाला है, तो वो प्राइस एक्शन क्या रिटेल लाता है? क्या वो प्राइस एक्शन लाता है स्मार्ट मनी। जब आप कहते हो कि मेरे को ये बुक के अंदर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, ईपीएस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस कम आ रहे हैं, टैक्सेशन बढ़ रहा है, सो व्हाट यू आर रियली सेइंग इज if I am able to identify these things on time, I am expecting that big money to also notice this and start putting money onto the share. No matter if you have even a diamond in your hand और आप 10 साल तक के उसको लेके घूम रहे हो, जब तक until and unless वो स्मार्ट मनी उसमें पैसा डालेगा, वो स्टॉक नहीं भागेगा, नो मैटर व्हाट। उसकी क्वालिटी हैज नथिंग टू डू विद द स्टॉक टू रन। When you say I'm doing a technical analysis, fundamental analysis, or techno-function analysis, you are just anticipating कि from this footstep, ये smart money cross करेगा. That's all it is. Nothing complicated than that. Okay, so basically अब हम क्या करते हैं जब हमें पता चलता है अच्छा कोई ऐसा है, ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, FII DII प्रो डेस्क है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वो कहीं हाइड कर रहे हैं, दे आर हाइडिंग समवेयर एंड वी स्टार्टेड लाइक अ डिटेक्टिव एंड ट्राई टू फाइंड देम. So I would just give this, I would like you guys to focus on this particular memes, which I think he's a Afghani guy जो funny video है जिसमें वो बोलता है पीछे देखो पीछे. So basically the real fun sadly is that the big money is actually standing behind you. They are not the one who actually propel the trend. They are the one who just starts the trend. So smart money सिर्फ ट्रेंड स्टार्ट करके हट जाता है और उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि उसको रिटेलर को ल्यूर करके उसको वहां ला के छोड़ देना है और फिर वहां से फिर रिटेलर पूरा गेम खेलते हैं, रिटेलर ऊपर लेके जाते हैं, पूरा ऊपर लेके जाते हैं, जबकि जो जो पैसा बन रहा होता है, रियल पैसा बन रहा होता है, वो स्मार्ट मनी का बन रहा होता है. इट्स लाइक अ फ्लाइंग अ काइट. जिन लोगों ने काइट बचपन में अगर फ्लाई की है तो दे नो कि काइट के अंदर उड़ाने में सबसे ज्यादा एफर्ट जब लगते हैं जब काइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाना होता है. जब काइट वो पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उसमें एफर्ट्स नहीं लगते, तो ऊपर की जो एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसका प्रेशर इतना होता है कि काइट ऑटोमेटिक अच्छे से फ्लाई करती है. एंड देन फिर आप उसमें जितने पैटर्न्स बनते हैं काइट के पेच लड़ाने के, वो फिर पैटर्न उसमें आप इजीली बना पाते हैं क्योंकि आपको फोर्स नहीं लगाना होता है. वही चीज आप जब फ्लाइट उड़ने वाली है, काइट उड़ने वाली है, तब आप करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा. तो बेसिकली रिमेंबर दिस काइट थिंग बिकॉज दिस गोना कम फर्दर ऑल्सो. सो इफ दिस इज ट्रू that smart money starts the trend and smart money end the trend, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं इस नॉलेज को? ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में ये है कि अगर कोई स्टॉक है तो उसका 20% ऑफ बॉटम का जो 20% है और टॉप का 20% है, ये आप हाथ नहीं लगा सकते. इसको कभी अटेम्प्ट भी मत करना, बॉटम कैच करने की कोशिश मत करना और टॉप पे उसको सेल करने की कोशिश मत करना. अगर आपको लगता है कि आपने बॉटम पे उस शेयर को बाय किया है तो फिर आपको नया बॉटम दिखाया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आपने टॉप पे सेल किया है तो आपको नया टॉप दिखाया जाएगा. तो ये जो 40% मार्केट, स्टॉक इंडेक्स, जो भी समझते हो आप, जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है, उसका 40% आपके लिए नहीं बना है. ये 40% क्रीम जो है ये स्मार्ट मनी के लिए है. he or she is the one who is going to start the trend and he or she is the one who's going to decide when the trend is going to stop. जिस दिन वो डिसाइड करेगा उस दिन टॉप लग जाएगा, जिस दिन वो एंटर करेगा उस दिन बॉटम लग जाएगा. तो ये 20% को भूल जाओ. आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े स्मार्ट मनी को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और जिस दिन आपको ये मिल जाए, बस उसके पीछे, वो ट्रक के पीछे कैसे बच्चे लटक जाते हैं, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. वो ट्रक पास हो रहा होगा, आपको उसके पीछे लटक जाना है,
जितनी आपकी कैपेसिटी है, नॉलेज है, सब कुछ है, क्योंकि मार्केट सब टेस्ट कराएगा। और अगर आप उसके पीछे लटक गए, आप भी थोड़ा बहुत पैसा बना लोगे। लेकिन अगर इस सोच के साथ आप आए हो कि मार्केट में स्मार्ट मनी को बीट करोगे, तो बॉस फिर मार्केट से बहुत सारी लेसन्स मिलेंगे, लर्निंग मिलेगी, और उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। ओके, नाउ दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज देयर, लेट्स सी कि स्मार्ट मनी बेसिकली चाहता क्या है आपसे। अगर मैं स्मार्ट मनी हूं तो बेसिकली व्हाट आई रियली वांट, दिस इज माय विश लिस्ट, दिस इज माय चेक लिस्ट। सो व्हाट आई रियली वांट इज कि मैं हैवी क्वांटिटी बाय करूं और कोई नोटिस ना करे। और ये नॉर्मली कब होता है, जो कि नॉन पॉपुलर स्क्रिप्ट्स होती है। तो अगर आप टॉप 50 स्क्रिप्ट्स या 100 स्क्रिप्ट्स को हटा दो, तो जितनी भी स्क्रिप्ट्स है वो इतनी पॉपुलर नहीं है, उसके ऊपर इतनी न्यूज नहीं बनती है। तो मैं बेसिकली वहां ज्यादा फोकस करूंगा बजाय रिलायंस या एचडीएफसी के। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ऑपरेटर नहीं बैठा है, वहां ऑपरेटर बैठा है, लेकिन उसका तरीके अलग होते हैं, जो हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस मेथड्स। दे आर वेरी, व्हेन यू हैव अ व्हेन यू डील इन बास्केट्स, जो 50 लाख की एक बास्केट होती है डील करने के लिए, when you deal in basket, then वो methods काम में आती है। You don't need to be worry about those things. So अगर किसी ने नोटिस किया, so first of all मैं हैवी क्वांटिटी बाय करूंगा और किसी ने नोटिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती से नोटिस कर लेता है, तो उसको मैं इतना फ्रस्ट्रेट कर दूंगा कि वो छोड़ के चला जाएगा। तो मैं बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स दूंगा, उसमें बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स होंगे, एंड देन यू विल इवेंचुअली गिव अप। सप्लाई शुड ड्राई हो जाना चाहिए। जब वो बड़ा आदमी घुस चुका है, उसके बाद सप्लाई ड्राई हो जाना चाहिए। तो बहुत स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनेगी लेस वॉल्यूम के साथ में। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको टेक्निकली आप बिल्कुल भी ट्रेड करना पसंद नहीं करोगे। वो चार्ट आपके सामने आएगा, बोलेगा यार ये चार्ट तो किसी भी हालत में ट्रेड करने लायक, एंड देन आई विल बी अलोन इन द बस। सो कीप शेकिंग वीक हैंड्स आउट। एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि कोई स्टॉक के अंदर अगर आपने बड़े पैसे को फाइंड आउट कर भी लिया, then only then also you can lose money, because वो बड़ा पैसा, वो गाड़ी तब तक अपनी स्पीड नहीं पकड़ेगी जब तक बड़ा पैसा वो स्टेशन पे उतर के छोले पानी पूरी जो भी उसको खाना पीना है सब कुछ काम निपटा के बैठेगा। जब तक उसकी फुल बाइंग उस स्टॉक में नहीं हुई है, वो स्टॉक नहीं भाग सकता। अगर भागने की कोशिश की रिटेलर्स के थ्रू, वो उसको ऐसा गिराएगा कि आप आपके एसएल पे एसएल हिट होते जाएंगे। तो यू गॉटा बी रेडी फॉर दिस शेकआउट्स, and until and unless he is done with his buying and he starts the bus, then only the money will come. Another thing, point number 5, I don't need to pump more money to make more money. Basically ये जो मैंने काइट का एग्जांपल दिया था, मुझे सिर्फ उसको स्टार्टिंग के अंदर पुश होना चाहिए। बट अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली हैवी वॉल्यूम लग रहा है हर एक स्टेप पे ऊपर बढ़ने के लिए, नहीं तो वो स्टिक ऑटोमेटिक गिर जा रही है, वो ज्यादा दिन तक के उसमें ऑपरेटर ऑपरेट नहीं करते, वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऑपरेटर हो और आपके पास आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप में 1200 स्क्रिप्ट है टोटल, जो इस तरह के ट्रेड्स के लिए मानी जाती है, वो 1200 स्क्रिप्ट्स के अंदर में मेरे पास मुझे ट्रेड करना है 60 स्क्रिप्ट्स में, तो मैं वो स्क्रिप्ट्स चूज करूंगा जिसमें मैं मिनिमम पैसा डाल के मैक्सिमम गेन ले सकूं। और अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मुझे कंटिन्यूअसली पैसा फीड करना पड़ रहा है उसको ऊपर ले जाने के लिए, आई वुड बैक आउट। आई डोंट वांट बी पार्ट ऑफ दैट। So this is one another telltale sign where if you see that heavy volume has to be pushed on every step, that stock is, it's not going to give you the returns you're expecting. The last point, which is I think the key point of this whole webinar, is that I buy a heavy quantity, but price should fall instead. तो मुझे heavy quantity buy करना है, लेकिन price fall होना चाहिए, and yes that's possible, I'll show you on the chart as well. And this is the very reason that actual reverse moves जो स्टॉक में होते हैं ना, जिसमें ऑपरेटर स्मार्ट मनी होते हैं, वो कभी भी, वो नॉर्मली आपके सामने स्कैनर्स में, न्यूज में, पब्लिक आई में नहीं आते। क्योंकि स्कैनर्स क्या दिखता है कि बड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है और 30% हाइक हो चुका है या ऑल टाइम हाई पे बैठा है, या इस तरह के जितने भी पैटर्न्स आप ट्रेडिशनल वे में देखते हो, वो पैटर्न, एक बात इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जितने भी कॉन्ट सिस्टम होते हैं ना, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन एफआईआई डेस्क, प्रो डेस्क, मैं कॉन्स्टेंटली उनसे बात करता हूँ उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए। जितने भी कॉन्ट सिस्टम है जो बड़े बड़े हेज फंड्स यूज करते हैं, प्रो डेस्क यूज करते हैं, दे डू नॉट ऑपरेट ऑन कैंडल स्टिक। ये थोड़ा शॉकिंग होगा कुछ लोगों के लिए कि कैंडल स्टिक को हम भगवान मानते हैं, एंड देन दे आर द वन हु क्रिएट दोज कैंडल्स।
They are the one who create the volume. They don't follow that. That's for retailers to follow, to find out the path which these guys have taken. But when they run the quant system, they do not follow candlestick. They follow simple price action and volatility. Volatility is the only thing they can control at certain extent, but they don't have 100% control. They have 100% control on price. They have 100% control on volume. They do not have, well, I say price and volume up to the point where it can affect them. Yes, retailer भी 50 एक हजार का 1 लाख का 10 लाख का 1 करोड़ का माल उठा सकता है, but that doesn't affect them. But when it comes to volatility, कहीं पे बम गिर गया, प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हो गया, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर, और कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया किसी कंपनी के अंदर जैसा लेमन हुआ था, those things are not in their control. So the only thing they are afraid of is volatility, and that's why quant systems are designed on volatility, not on candlesticks and the traditional things we look for. So if you are finding the person, you need to understand what that person is following. Okay, I hope once I'm done with this presentation from Monday, your approach towards looking at chart will change forever. Rule number 1, never analyze price and volume together. आज के बाद आप इसको टेस्ट करिए, वेरीफाई करिए, अगर सेंस बनता है तो यूज करिएगा, लेकिन as far as I am concerned, I never analyze price and volume together. और प्राइस एक्शन का फर्स्ट रूल ये है कि ब्रेकआउट हुआ है, बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो इसमें घुस गया है. सोच के देखिए, जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसके रूल ये है कि प्राइस को हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे आपको जज करना है और वॉल्यूम को हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करना है. अगर आप प्राइस और वॉल्यूम को सेम टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं तो आपको बहुत इजीली फंसाया जा सकता है, बिकॉज दैट इज समथिंग ऑपरेटर नोस. I know this sounds very counterintuitive, but let me explain the reasoning behind it. See, market is a forward-looking instrument, right? Everybody agrees on that, I assume. कि मार्केट में प्राइस हमेशा प्रिसीड करता है न्यूज को. अगर किसी बड़ी डील होने वाली है तो जब वो डील साइन हो जाती है तब उसकी इंफॉर्मेशन सेबी के पास जाती है, लेकिन प्राइस में अप्रिसिएशन तब तक आ चुका होता है. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीएनबीसी आवाज पे कोई न्यूज दिखाई जा रही है और उसके बाद आप उस चार्ट में घुसोगे और पैसा बना लोगे, मे बी 10 में से एक बार या 2 बार, इट्स नॉट गोना वर्क. तो प्राइस विल ऑलवेज प्रीसीड्स द न्यूज, बिकॉज इनसाइडर न्यूज जिन लोगों के पास होती है, एम्प्लॉइज है, उनके रिश्तेदार है, दे ऑल ट्रेड, तो प्राइस हमेशा प्रीसीड करता है. लेकिन चूंकि मार्केट इज नॉट अ फेयर इंस्ट्रूमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू बीट स्मार्ट मनी इन द मार्केट. सो देयर वुड बी द फर्स्ट वन टू मेक द एंट्री, द 20% रूल. तो जो प्राइस आपको दिख रहा है, तो अगर आप ऑपरेटर हो तो क्या आप वेट करोगे कि मार्केट में न्यूज आएगी, उस दिन मैं बड़ा वॉल्यूम के साथ बाय करूंगा और मैं उस दिन प्राइस को अप्रिशिएट करूंगा? मार्केट में जब न्यूज आ जाती है और जो प्राइस का अप्रिसिएशन और वॉल्यूम आप देखते हो उसमें ऑपरेटर नहीं होता है. ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसीलिए 85% ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो फेल होते हैं, और आई वुड से इवन 91% ब्रेकआउट्स फेल. द प्रिसाइसली द रीजन इज दैट because the volume which you are thinking is the institution volume or operator volume. That's not the case. That only happens in one scenario which I will explain कि इस किस केस में ये ऐसा होता है, that also I will explain. But in probability wise 80% cases you will not find. So the real sequence is to analyze a price action is ऐसा स्टॉक जो ऑपरेटर की विश लिस्ट को फॉलो कर रहा हो. अगर वो ऑपरेटर की विश लिस्ट को फॉलो कर रहा है तो उसमें वॉल्यूम पहले से आके रेडी पड़ा रहेगा, लेकिन प्राइस अप्रिशिएट नहीं होगा. जब वॉल्यूम आ चुका होगा उसके बाद वो प्राइस में करेक्शन करेगा ताकि जितने लोगों ने वॉल्यूम नोटिस किया है वो उससे बाहर निकल जाए. और जब वो करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा वहां से वो कंसोलिडेट करने के बाद पूरे वॉल्यूम को ड्राई कर देगा और वहां से फिर प्राइस और वॉल्यूम दोनों एंटर करेंगे और वो प्राइस जो होगा दैट्स द प्राइस. एंड दिस द लास्ट स्टेप will not come until and unless ये ऑपरेटर ने उसको जितना माल मार्केट से उठाना था वो कंप्लीट हो गया. तो अगर ये प्राइस आ गया है और ब्रेकआउट लेसर वॉल्यूम के साथ हो रहा है और इक्विवेलेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, देयर शुड बी अ वॉल्यूम बिफोर. यहां जो बोला था मैंने, पीछे देखो, पीछे, यू नीड अ वॉल्यूम बिफोर हैंड.
Breakouts, in my humble opinions, cannot be traded based on that particular event. Breakouts can only be traded based on what has happened before breakout. ब्रेकआउट के पहले जो जर्नी हुई है वो मेन क्रक्स है. ब्रेकआउट के दिन जो हो रहा है, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन अंडरस्टैंड दैट. दैट्स नॉट हाउ मनी गेट मेड. मनी गेट मेड व्हेन यू एनालाइज व्हाट हैज हैपेंड बिफोर ब्रेकआउट. और अगर उसके पहले आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, then and then only you are in the script where operator is already in place. और आपको सिर्फ ट्रक के पीछे लटकना है and then enjoy करो. So I hope this is clear because this is very important. Okay, last chronology. As far as examples goes, Ludo versus chess. अभी जब तक मैंने जो भी आपको समझाया है वो इस तरह की फीलिंग दे रहा है कि हम एज अ रिटेलर लूडो खेल रहे हैं. और लूडो का जैसे आपको रूल पता है कि जो भी इंसान गेम के स्टार्ट में जितनी तेजी से 6 ला सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा होती है. और आप ऐसे कैसे इंसान के साथ खेल रहे हो जिसके हाथ में पासे उसके हिसाब से काम करते हैं, वो जब चाहे 6 ला सकता है. सो डेफिनेटली ही इज गोना विन. रॉन्ग. बेसिकली जिसको आप लूडो का गेम समझ रहे हो वो चेस का गेम है. और चेस के अंदर एक टर्म होती है, जो लोग चेस खेलते हैं वो जानते होंगे इस बारे में, क्वीन सैक्रिफाइस. जिन लोगों को चेस नहीं समझता, लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो क्वीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑन द चेस बोर्ड. सबसे ज्यादा पावर उसके पास होती है क्वीन के पास. You sacrifice your king so that the opponent stop paying attention to his defense, and then within 4 or 5 moves you do a checkmate. तो अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हो जहां आपको लगता है आप लूडो खेल रहे हो और हर एक के ये जो 4 लोग हैं इनके विनिंग के चांसेस 25% है, बिकॉज 100% में से 4 लोग जीत सकते हैं, हर एक के 25% चांस है जीतने के. और अगर आप उसके थोड़े एडवांस लेवल पे हो तो आप बोल रहे हो ठीक है मुझे ऑपरेटर के साथ खेलना है जो 6 कभी भी ला सकता है. दैट्स अनदर स्टेज. थर्ड स्टेज इज you understood that it's a chess game, and fourth stage is where you know that chess game तो है बॉस, बट जो सामने वाला है ना वो क्वीन सेक्रीफाइस कर रहा है. क्वीन सेक्रीफाइस. अब ये जो भाषणबाजी मैंने की है इसका रियल, मैंने एक फर्स्ट पॉइंट बोला था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज. ये सुनने में अच्छा लगता है बट इसका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? इफ इट इज नॉट मेकिंग प्रैक्टिकली सेंस यू शुडंट बी थिंकिंग or listening to that particular point. What really queen sacrifice means is that this point, I buy the heavy quantity but price should fall instead. So if I'm an operator और मुझे अगर 1 करोड़ का माल उठाना है तो मैं 1 करोड़ 10 लाख का माल उठाऊंगा. मैं 1 करोड़ की बाइंग करूंगा और उसके बाद फ्लैश सेल मारूंगा 1 लाख की. और वो 1 लाख में मैं प्राइस को जहां पे मैंने बाइंग की थी उससे भी नीचे लाके छोड़ दूंगा. और लोगों को लगेगा ये फेक ब्रेकआउट था, ट्रैप था, 1000 टर्म्स मिल जाएगी सीएनबीसी पे आपको इसकी. एंड दैट्स हाउ दे सैक्रिफाइस देयर क्वीन टू रीप द बेटर अवार्ड्स. Okay, so let's look few charts. So ये okay, one more thing before मैं डिटेल में जाऊँ. I have certain rules while I trade or invest. I do not share a chart which I believe people can enter based on my feedback. एंड वो एंटर करेंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे और मैं फिर धीरे से उसमें से निकल जाऊंगा मेरा प्रॉफिट लेके और वो बेचारे फंस जाएंगे. दैट्स नॉट हाउ आई ट्रेड. I only share chart when either they are in upper circuit or lower circuit, which means nobody else can enter it, or I'm already out of that trade. But because I started preparing this presentation yesterday night, I did not had enough time to pick up the scripts where I may or may not have position. So I am making absolute clear, do not trade this scripts. Because understand one thing, even if I tell you the scripts which I am trading right now, अगर उसके अंदर रिटेल का पार्टिसिपेशन हो गया बहुत ज्यादा तो वो स्क्रिप्ट नहीं भागेगी. वो कहते हैं ना टू मेनी शेफ स्पॉइल्स द ब्रॉथ. ज्यादा शेफ अगर एक ही डिश को बनाने में घुस जाएंगे तो वो डिश की 12 बज जाएगी. सो प्लीज कीप इन माइंड these are just examples. Do not use this for your own trading. Now I'm going to show you 2 things here. Let's look at this stock from standard price action point of view. What you're really seeing is
यहाँ से प्राइस हायर हाई बनाने लगा, यहाँ एक विपसॉ दिया विच इज ओके बिकॉज इट्स जस्ट अ वीक, एंड देन अगेन ऊपर जाने लगा, हायर हाई बनाते रहा, एक छोटा मूव आया लेकिन सपोर्ट लिया, फिर वापस से हायर हाई बनाते रहा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे बैम वॉल्यूम आ गया, सी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया, ये जो लाइन है इसको ब्रेक किया, यहाँ पे लोग एंटर कर गए, ताली बजाने लग गए, 50 के यहाँ से कितना 330 से 354 का प्रॉफिट बना, और ये जो 29th क्या है 29 जुलाई राइट, लेट मी मूव दिस आउट, और 29 जुलाई को अर्निंग डे था, अर्निंग डे पे बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई, और ये पूरा स्टॉक बैम, जितने भी रिटेलर थे सब बाहर, राइट, that's how we and observe price action, right? Okay, now this is let me put it back, 29 July, let me go on hourly chart. So ये है वो इवेंट, नाउ मैं इसे हटा देता हूँ, वॉच दिस इवेंट केयरफुली। सो यहाँ पे बाइंग हुई, प्राइस को ऊपर ले जाया गया, प्राइस ऊपर चला गया, रिटेल एंटर हो चुका है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, प्लस वॉल्यूम के साथ आया तो काफी स्कैनर्स के अंदर ये चार्ट आ चुका है। प्लस अगर आप मिनाविनी को फॉलो करते हैं या फिर निकोलस को फॉलो करते हैं, तो सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स कंसोलिडेशन इज हैपनिंग, कंसोलिडेशन हैपनिंग हियर एज वेल, सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग बिकॉज दैट्स अ सपोर्ट हियर ऑन दिस साइड, यहाँ पे सपोर्ट है, एंड यहाँ से ऊपर निकलने लग गया, सारे टेक्निकल मैच हो रहे सब, यहाँ से फॉलो आउट स्टार्ट हुआ, अर्निंग डे था, अर्निंग डे के दिन फॉलिंग हो रहा है, जरूर किसी बड़े इंसान के पास बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये फॉल बहुत ब्रूटल है, लेकिन लुक एट द वॉल्यूम, यहाँ पे इस वॉल्यूम के साथ इस कैंडल पे चार्ट को गिराया गया, लेकिन इमीडिएटली जैसे ही वो बॉटम टच हुआ, हैवी बाइंग करके, उससे ज्यादा क्वांटिटी बाइंग करके उस चार्ट को वहां तक नहीं पहुंचने दिए, इतनी फास्ट एंड फेरोशियस बाइंग हुई कि उस चार्ट को वहां दोबारा प्राइस एक्शन पे पहुंचने नहीं दिया, और उसके बाद भी दे इंश्योर कि ये कैंडल देख के भी जो एंटर किए थे, उसका ये छोटे छोटे ये जो कैंडल्स है रेड वॉल्यूम वाले, इस पे उन्होंने सेलिंग की, एंड दे इंश्योर्ड कि ये पूरा कोई गलती से भी घुसा होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वो बाहर हो जाए। कोई भी इंसान विद द राइट स्टेट ऑफ माइंड on a daily candle will never enter on this stock because this doesn't make sense. However, if you notice this stock, यहाँ पर जो रेड रेड कैंडल है उसकी वॉल्यूम देखो, इतना कम वॉल्यूम है, जो यहाँ पर ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये सब कवर कर लिया गया, ये वॉल्यूम फिर से बाय कर लिया गया। लेट मी टेक यू बैक ऑन द डेली चार्ट, सी दिस अर्निंग पे रेड कैंडल, but in reality that's not a red candle, that's actually a neutral candle. If I go on hourly, look, I'm showing it again. So that's a neutral candle, but what it has done is, go back daily, जो भी ये प्राइस मूवमेंट था पूरे को निगेट कर दिया, राइट? अब ये क्यों किया गया? इतने एफर्ट डाले गए, क्यों डाले गए? ये जो कैंडल है ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज फिर सेशन और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। बट इवन इफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, मैंने क्या कहा था, रूल नंबर 1, प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम की कुंडलिनी समझना है तो उसके छोटे छोटे सारे जो सातों ग्रह है वो जाके देखना पड़ेंगे। Just because you trade on a daily and weekly chart, I personally trade on weekly charts and monthly charts. I look daily on hourly max while taking a trade, but when it comes to volume, even if I have to go to up to 5-minute candle, I will go. Until and unless I am sure on the volume, I will not take a trade. So now अगर आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे ऑपरेटर घुस चुका था, जो प्राइस में इफेक्ट आया था उसने हटा दिया, so that logically makes sense that operator has entered with a big volume. It's not very popular script, and even if you look from price action point of view, जो candles की quality है, first of all there are many more red candles as compared to the green candles, number 1. Number 2, even though there are green candles and red candles, the quality of the candle, the width, the height, ये कुपोषित बच्चे होंगे ना, ऐसा लगता है इसको बॉर्नविटा नहीं मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर, ये जो कैंडल्स है, they just
Do not resonate with any guy. If a Mark Minervini guy, you will say, boss VCP तो कहीं से नहीं बन रहा है, यहाँ पे शायद मैं इसको रनिंग VCP बोल सकता था, ये कॉन्ट्रैक्शन जो फेल हुआ खत्म हो गया। आप टार्वस को फॉलो करते हो, बॉक्स कहीं से भी नहीं बन रहा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बोल सकता था, ये बॉक्स यहाँ ब्रेक हुआ, रीटेस्ट मारा, वापस से ऊपर निकला, दुनिया जान की थ्योरी लगा लो। ये चार्ट आप किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को दिखाओगे, वो बोलेगा बॉस ये चार्ट को ट्रेड नहीं करने का है, क्योंकि वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है सालों से। There's no point trading this chart. But why this guy has entered here? यहाँ इसने पोजीशन क्यों बनाई और प्राइस को पूरा अप्रिशिएट क्यों किया? क्योंकि इस दिन यहाँ पे 3rd of September को जो इसके प्रमोटर हैं, उन्होंने 57 करोड़ के शेयर की प्लेजिंग रिवोक किया इस कंपनी में। एंड नाउ दिस हैज अगेन स्टार्टेड स्लोली। नाउ अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और ऊपर जाता है, फिर लोग बोलेंगे स्टार्ट को, देखो देखो बॉस, नाइस राउंडिंग बॉटम बन रहा था, ये है फलाना है ढिमका है, बुलशिट। None of these matters. Did you know here when this price was falling why it was falling? If you're not able to figure it out, hindsight में तो चार्ट अभी अच्छे दिखते हैं, but if you're not understanding what चार्ट से आपको बात करना पड़ेगा। चार्ट आपको बताएगा कि बॉस क्या चल रहा है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछो, चार्ट को क्वेश्चन पूछो, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है दैट्स फाइन, बट कीप दैट क्वेश्चन इन माइंड लेटर व्हेन दिस चार्ट, फॉर एग्जांपल आई न्यू कि ऑपरेटर यहाँ एंटर कर चुका है, क्यों एंटर किया उसका आंसर नहीं था मेरे पास। आई डिड नॉट नो दैट कि इसमें ऑपरेटर घुसा क्यों। व्हेन जब ये न्यूज आई 3rd of September को कि 57 करोड़ के शेयर को अनप्लेज किया गया है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग, बेसिकली जब मार्केट से हमें पैसा लेना होता है, सो व्हाट वी डू इज वी गिव so when you say operator, who is operator? Operator is the guy been appointed by promoters most of the time. Most of the time operators को promoters पैसा देते हैं एक स्क्रिप्ट को डाउन या अप ले जाने के लिए, and everybody uses it. In as far as Indian market is concerned, I have no doubt even government uses it. You don't believe me? Go and check IRCTC chart. कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट के पहले वो चार्ट को पूरी तरीके से भगाया जाता है ऊपर, और जब वो चार्ट जब डिसइन्वेस्टमेंट के पास होने लगता है तब उसको दिया जाता है डिस्काउंट, और जैसे ही वो डिस्काउंट के साथ वो डिसइन्वेस्टमेंट पूरा होता है, वो चार्ट धड़ाम से गिर जाता है। अभी बात चल रही है हिंद कॉपर की, जाके हिंद कॉपर का चार्ट देखिए, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया में ये जो पूरा गैंग इतना इजी है इंडिया में मैनिपुलेट करना, यही चीज अगर यूएस में हुई होती हो तो ये बंदा जेल में होता। नाउ आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग हियर, आई डोंट नो दिस गाय, आई डोंट नो द ऑपरेटर्स, बट चार्ट इज टेलिंग मी कि बॉस गेम तो हुआ है। यहाँ पर इसने बंदे ने कोशिश की और गिराने की, बेसिकली अगर इसको और माल खरीदना होगा ना तो ये इसको यहाँ तक भी लाएगा, यहाँ तक भी लाएगा, लेकिन ये स्टॉक उस दिन तक के ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये भाई साहब का पेट नहीं भर गया। क्योंकि बेसिकली कंपनीज क्या करती है, माल को अनप्लेज करती है, एक एक पर्टिकुलर लेवल तक के स्टॉक को लेके जाती है और फिर वहां पे फिर से प्लेस करती है ताकि उनको ज्यादा लिक्विडिटी मिले। एवरीबडी डू दैट, इट्स अ ओपन सीक्रेट। So whatever I said, let's go to the quickly to the list. I should buy heavy quantity and nobody should notice. If somebody notices, they should give up later in frustration. The supply should dry. Look at the supply after that. There is no supply whatsoever. I will be alone in the bus, most probably. I don't need to pump more money to make more money. Now this chart has to decide. अगर ये यहाँ से ऊपर निकलना शुरू करता है तो कितनी बार ऐसे वॉल्यूम प्रमोटर्स को लाना पड़ेंगे और ऑपरेटर्स को लाना पड़ेंगे। अगर ऐसे वॉल्यूम उन्हें बार बार लाना पड़े तो ये चार्ट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। If you wanna really check the chart, show you in fact. Now I buy the quantity, but price should fall. I showed this, right? Heavy quantity buy हुई है, but price नहीं बढ़ा है। Now let me just, for the sake of completing this discussion, let me show you IRCTC chart. Do you see, except this, ये तो news based है. Do you see anywhere this chart apart from the initial base? Do you see anywhere ये यहाँ से यहाँ तक की journey? If I check the price, ये bottom बनने के बाद और कहाँ तक volume नहीं आया, यहाँ तक, right? That's 118%.
तक के कोई भी वॉल्यूम नहीं है, जो भी इसमें बैठा है उसको 1% भी एफर्ट नहीं डालना पड़े इस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। यहां तक मैंने जो समझाया है, I know you will have a lot of doubts, and my hope is by the end of this presentation you do not have those doubt remains. But don't worry, अगर मुझे पूरी रात भी बैठना पड़ा आपके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, आई विल सिट एंड आई विल आंसर each and every single question as far as you are paying attention while I'm explaining. Don't ask me stupid questions, please. So that's first example. Now let's look at the next example. ये है भाई साहब हमारे एम्फेसिस. नाउ इस चार्ट को देख के कोई भी इंसान, भले टेक्निकल आता हो या नहीं आता हो, या फंडामेंटल मुझे नहीं पता, टेक्निकल नहीं भी आता है, यू कैन से दिस इज अ डैम गुड स्ट्रॉन्ग चार्ट. दिस जस्ट, it's not stopping anywhere, it's constantly going up, and you just, it's a dream chart, very strong chart, doesn't show any weakness whatsoever. जो normal, जिसको हम क्या कहते हैं, टेनिस बॉल मूवमेंट प्राइस एक्शन में, tennis ball movement is basically, stock is keep bouncing. So there is a tennis ball movement and there is a egg movement. Tennis ball movement is you push a stock, it takes a high and then it retraces, healthy retracement, and then it pushes high. अगर healthy retracement नहीं होगा तो stock push नहीं करेगा आगे. It's like going to the gym. If you don't push your reps, you're not going to go to the higher weight. Similarly in stock, if stock is not bouncing down well, it's not going to go up higher also. And then there's another category called egg stock. एग स्टॉक ये होते हैं बहुत ऊपर जाते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं और फिर वापस से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट नहीं देते, पुल बैक नहीं देते. तो इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ टेनिस बॉल स्टॉक्स, नॉट द एग स्टॉक्स. ये मार्क विनोविनी का कंसेप्ट है. द क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू. 99% चीजें जो इसमें यूज हुई, इनफैक्ट 100% चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे है. But whenever I'm going to use anything from outside, I will give you due credit. Otherwise, all these things is based on my personal experience. और एक इंसान के एक्सपीरियंस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो whatever I am saying, it's all bullshit. Go verify everything. If it proves to you that it's worth, then utilize it. Okay? Don't believe just because Chetan is saying. Chetan has no value. Okay. Now, इस स्टॉक के अंदर कुछ तो ये this is a famous script. It's not a script where you can enter and then nobody will notice. But if I have to make entry in this script, what would I have to do is जो मेरे fake प्राइस एक्शंस जो होते हैं, मुझे उसको इतने स्ट्रांग रखना पड़ेंगे कि जो ये पूरी जर्नी में बैठते हुए आ रहे हैं वो इसमें से बाहर निकल जाए. तो 23 जुलाई, ये मैं थोड़ा सा 20 इसको हटा ही देता हूँ. ये है 23 जुलाई का वॉल्यूम, ठीक है, और ये है 23 अगस्त का वॉल्यूम. नाउ यू टेल मी, ये गैप अप होता है इस दिन, इतने बड़ी वॉल्यूम के साथ उसमें सेलिंग आती है, क्या आप इसमें ट्रेड कंटिन्यू करेंगे? आई अंडरस्टैंड आप यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एंटर किए, आपने बॉक्स बनाया, वीसीपी बनाया, सब कुछ हो गया, वेल डन, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से कंटिन्यू करोगे क्या? एंड देन लेट मी रिमाइंड यू, इट्स सिटिंग एट ऑल टाइम हाई आल्सो. अर्निंग के डे पे इतने बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे आता है. एंड देन सो लेट्स एनालाइज दिस. सो आई एम गोना पुट इट बैक एंड आई एम गोना गो ऑन आवर्ली चार्ट. सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आई हैव अ फीवर, सो मेरी वॉइस थोड़ी क्रैक होने लगे तो डोंट माइंड प्लीज. लुक एट दिस वॉल्यूम. Actually, this was a buying volume, not the selling volume. But immediately after this volume, buying volume, there is a series of smaller selling volume which ensure that price do not appreciate. So if you are analyzing this chart on a daily time frame, weekly time frame, you will exit this chart. Hence, rule number one, never analyze price and volume together on the same time frame. Now let me go back on the daily chart. That's the another volume. I'm going to put it back. Hourly chart. Remove this. Look at the buying volume.
and then immediately price retraces. Now let's run through all the scenarios. रिटेल घुसा है यहाँ पे इतने वॉल्यूम के साथ, विच इज इम्पॉसिबल, बट लेट्स से फॉर द आर्ग्यूमेंट से रिटेल घुसा है यहाँ पे से, अगर वो जरा सा भी नीचे जाता है, अगर रिटेल ही घुसा है तो ये यहाँ बेचेगा क्यों? 1 घंटे में क्यों बेच देगा? कोई इवेंट नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद प्राइस इतना डिप्रिशिएट करेगा कि जो पुराने लोग इतने बड़े बड़े फॉल पे भी सेल नहीं किए, वो सेल कर दिए सब एक साथ, और वॉल्यूम बना ही नहीं। तो अगर रिटेल घुसा है तो रिटेल जब सेल करेगा तो सेम वॉल्यूम के साथ सेल करेगा ना, बट वॉल्यूम तो नहीं है। बेसिकली गेम क्या हुआ है यहाँ पे मैं बताता हूँ। नाउ वी डोंट नीड दिस। नाउ वन मोर थिंग, most of the time, well, not most of the time, more than 60% of the time, whenever this game get played, they get played on the earning day, dividend day, बड़ी न्यूज के दिन पे यहाँ पे गेम खेला जाता है ताकि कोई शक ना करे। बिकॉज सेबी कैसे फंसाता है, सेबी कैसे पकड़ेगा? सर आपने इनसाइडर बाइंग की है, आपने इतना वॉल्यूम उठाया है, और उसके बाद प्राइस अप्रिशिएट हो गया। अब सेबी बोलेगा यार इसने बाय किया और उसके बाद तो प्राइस डेप्रिशिएट हो गया, तो ये बंदा को मैं इनसाइडर के केस में फंसाऊं भी कैसे? दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। तो ये भाई साहब ने यहाँ पे वॉल्यूम उठाया, एक्सपेक्ट किया कि गैप अप हुआ है, प्राइस गिरेगा, गैप अप के अंदर आएगा, लोग बोलेंगे गैप अप फेल हो गया, और ये उसका बेसिक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो आना ही आना है। लेकिन ये स्टॉक नहीं आया। सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, कोशिश की कि वापस से गिरे, वॉल्यूम तो उठा लिया, लेकिन प्राइस जो वो चाहते हैं कि अगर और माल उठाना है, क्योंकि देखो यहाँ माल उठाया लेकिन उसको और माल चाहिए था, इसलिए उसने ये कोशिश यहाँ पर भी की, फिर भी नहीं हुआ। थोड़ा सा प्राइस गिरा लेकिन फिर से रिट्रेस कर गया। इट इज अ डैम स्ट्रॉन्ग चार्ट, ये स्टॉप करने का नाम ही नहीं ले रहा। दैट्स हाउ यू एनालाइज प्राइस एक्शन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। डिड आई कंप्लीटेड एवरीथिंग? या यहां तक कि किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो। तरुण जी, गुरजीव जी, एनी फर्दर पॉइंट यू वांट मी टू एम्फेसाइज? कुछ और बताना चाहिए? I feel you should continue, and if anybody has questions, we'll do a Telegram voice chat where they can address their questions also. ठीक है, Because since you are also not feeling well today, so we'll do it after maybe 1 or 2 days. ठीक है, ऑल गुड। ओके, लेट्स Or guys, if you can write 1 or 2 questions, because otherwise the session will take a longer time, and we should respect his health also. Okay. okay, let's start, let's carry on. Okay, now I'm going to talk about the pullbacks. Normal pullback, let me go full screen. Normal pullback, how does it work? I think everybody knows. Basically A B C D पैटर्न बनता है, A बनता है, फिर B आया, ये जो साइज है इसी इक्विवेलेंट है। हालांकि ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है because of lack of time. Just imagine कि ये दोनों की साइज with same है, and then it goes to the C and then retraces back to the point where it is A, and then it is cruising up. That's a normal pullback. Now ये इसको बोलते हैं EX point. EX point is the expensive point. B is for best point and A is for value point. So what you're really saying is यहाँ पे प्राइस बेस्ट, यहाँ पे जो भाव मिल रहा है वो बेस्ट भाव है, बेस्ट प्राइस है। और ये जो ए पॉइंट है ये फेयर वैल्यू है, प्राइस का फेयर वैल्यू है। और ई ये जो सी है इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव जोन, यहाँ पे प्राइस एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि प्राइस को हमेशा फेयर वैल्यू पे या चीप लेवल पे या बेस्ट वैल्यू पे बाय करना चाहिए। तो दैट्स नथिंग बट दिस, दैट्स व्हाट दे मेंट व्हेन दे से प्राइस ऑलवेज हैज टू बी ब्रॉट ऑन द फेयर वैल्यू और ऑन अ गुड वैल्यू। वैल्यू बाय जो होती है वो बी पे होती है, फेयर वैल्यू पे बाय करना है ए पे होती है, एक्सपेंसिव बाय सी पे। नाउ इसको बेसिकली फिबोनाची के साथ करा जाता है। सो बेसिकली इफ आई टॉक इन फिबोनाची टर्म्स, व्हाट यू excuse me, so basically what you're saying is अबाउट 30% अगर स्टॉक के रिट्रेसमेंट के पहले मैं उठा ले रहा हूँ तो मतलब बिलो अबाउट 30% पहले, 30% के पहले ही मैं उठा ले रहा हूँ, दैट्स एन एक्सपेंसिव जोन। अगर मैं 60% तक के 30% के तक के आ जा रहा हूँ, वहां तक के उठा रहा हूँ, दैट्स अ फेयर वैल्यू। एंड 68% के ऊपर मैं उठा रहा हूँ तो दैट्स अ वैल्यू बाय बेसिकली। नाउ दिस इज द क्लासिक नॉर्मल पुल बैक।
This is a complex pullback. So complex pullback में क्या होता है? You go for the standard way up to C, and D भी होता है, and then rather than going up, you halfway through stops. That is becomes your E, and then you retraces back, which is the standard support on the price action. Basically जहां से move start हुआ है, high बना है, next high को breach कर दिया है और high को maintain नहीं कर पाया, तो जो previous high होता है उसका जो support होता है वो support count किया जाता है. So in this case that's B. This price should ideally stop on the B, which becomes F. Then it try to break the high, previous high, swing high, and that fails here, G, and then create a small retraction and then go to I. This is the pattern I have seen operators been using again and again and again. But again, I'm going back to my point. It is very easy to speak all these things in a hindsight, but it is very, very difficult even for an experienced traders to observe this pullback and say, boss, yes, this is the complex pullback, और मैं यहाँ बाय कर लूंगा, यहाँ बाय कर लूंगा और बस पैसा बन जाएगा. ये नहीं होता है रियल लाइफ. So what I've done is I'm gonna share you one pattern with you, which I don't think there is any name of that pattern, and if कोई name है तो मुझे बताइएगा please. I couldn't find a name of that pattern, but I trade that pattern. So for a time being, I'm just calling it's my pattern. Patent pending है इसका, मेरा नाम नहीं डाला है. Future में कभी patent कराऊंगा तो maybe it will become my pattern. But until then, use it, utilize it. इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि इसकी कंडीशंस ये है कि प्राइस जो है बहुत तेजी से पूरा गिर रहा है, काफी टाइम से पूरी होप निकल चुकी है उसकी, और एब्सोल्यूट बॉटम बन चुका है जिसको बोलते हैं पॉइंट ओ. तो जीरो लाइन जिसको कहते हैं, जीरो लाइन से फिर ये प्रॉपर ए बी सी पैटर्न बनता है और यहाँ पर आपका ये बॉक्स बनाता है. बॉक्स बनाने के बाद एक छोटा सा हाई लेके फिर वापस से कंसोलिडेशन करता है और एक बॉक्स बनाता है, और यहाँ से फिर वो अपना बड़ा मूव स्टार्ट करता है और उसका जो प्रीवियस हाई होता है ऑल द वे टॉप जो उसका बना था कई सालों पहले, फिर वो उसको ब्रीच करता है. That's my pattern. That's the pattern I trade. I couldn't find the name of this pattern, but I have noticed this thousands and thousand times. And once I started observing again and again, I started trading it, and yeah, it does work very well. So how would you trade this? So once you have ABC pattern, then you basically looking for a box where you constantly seeing rigging is happening, grading is happening, nothing is going on. And then when you have a third touch point, 1, 2, 3, for example, on third touch point, you make your first entry. Second entry you make at the breakout of the box. Third entry you make on this third touchdown again. And fourth entry you make on the breakout of this box. Because जब ये बॉक्स से ये बाहर निकलेगा, इसके बाद ये आपको एंट्री बनाने का टाइम नहीं देगा. भूल जाओ, बहुत मुश्किल है कि ये एंट्री मिलेगी, और एटलीस्ट आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये जो मूव आएगा, ये मूव इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा. ओके, सो लेट्स go to chart. So that's the chart. I've traded. I can speak freely because I'm out of this trade anyway. So that's your high, and then high से 2018 का high है ये पूरा all the way bottom बनाया, A B C पैटर्न बनाया, उसके बाद बॉक्स बनाया, बॉक्स को ब्रेकआउट किया, फिर एक लेंदी बॉक्स का जो रूल होता है कि अगर वो छोटा होगा तो टाइम भी कम लेगा और प्राइस मूवमेंट भी बढ़ा देगा, और तो उसमें होल्ड टाइम कम होता है. बड़ा बॉक्स होगा, विथ ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रिगिंग ज़्यादा होगी, टाइम वेस्ट करेक्शन बढ़ जाएगी. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू यू क्रिएट बॉक्स? इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट बॉक्स, सिंपल स्टेप, टॉप फाइंड आउट करो, जहाँ पे वो टॉप मारे वहां से 3 कैंडल तक के वो टॉप ब्रीच नहीं होना चाहिए. बॉटम तक आने दो, जो भी उसको बॉटम बनाना है दुनिया जहान का बनाने दो, वो बॉटम के बाद 3 कैंडल तक के वो बॉटम ब्रीच नहीं होना चाहिए. दैट्स योर बॉक्स, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं. तो ये आपका बॉक्स बन गया, यहाँ पे टच किया और ये इसको ब्रीच किया और ये इसने भाई साहब ने ग्रोथ दी. नाउ this is a weekly chart. Of course this pattern works quite well. Daily पे भी दिखेगा, but you need a really experienced eyes to observe this on a daily chart. I prefer weekly. I'm not that experienced. I prefer weekly, and weekly पे मुझे काफी clearly ये pattern दिखता है. तो entry wise, first entry यहाँ, another thing which I use, you don't have to use it if you don't want to use it.
there are absolutely two key elements if you want to make big money in the market. Number one, you need to know pyramiding. If you don't know pyramiding, भूल जाओ, पैसा नहीं बनने वाला. बड़ा पैसा नहीं बनेगा, normal पैसा बन जाएगा. That doesn't add any value. It should be worth of your time. Number two, you have to whenever you make an entry, you will always make a staggered entry. Keep adding, keep adding, keep adding. Whenever you are exiting, you will always exit also in staggered form. ना तो एंट्री एक में फुल में होगी, ना ही एग्जिट फुल में होगी. स्टॉक बोलेगा मुझे में और पैसा डाल, आपको डालना है. स्टॉक बोलेगा मुझसे पैसा निकाल, आपको निकालना है. चार्ट जो बोलेगा वो सुनना है, न्यूज नहीं फॉलो करने का. मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कब न्यूज देखी थी. आई डोंट फॉलो न्यूज, आई डोंट फॉलो एनीथिंग, आई डोंट फॉलो एनी कमेंटेटर, आई डोंट केयर. अगर मेरा चार्ट नहीं बोल रहा है, अगर फंडामेंटली भी ये स्टॉक होगा बट मेरा चार्ट नहीं बोल रहा, आई डोंट केयर. जो मुझे चार्ट पे दिखेगा, प्राइस बोलेगा, मैं वही फॉलो करता हूँ. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या हो रहा है. Yes, I have taken certain bets based on the um, managements and rate of change, those two concepts. Yes, but again, still मेरा stop loss उन charts में भी जो मैं value addition के basis पे ले रहा हूँ, value investing के forms में ले रहा हूँ. I am a growth investor. I do not follow much on the value investment, but even though if I follow value investment, I still have a stop loss in that. I do not trade anything without stop loss. और जब stop loss hit होता है, one rule I follow is I do not analyze chart during market. After market मेरे पास टाइम नहीं होता है because of time zone difference. I analyze after market. मेरा stop loss, entry, staggered entry, staggered exit, quantity, ये सब मैं define करके ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम अकाउंट में मेरे सब इंडिकेटर डालता हूँ. 300 प्लस मेरे मार्कर लगे हुए, वो डाल देता हूँ. जब वो आता है आई एग्जीक्यूट. मे बी 5-10 सेकंड देख लिया तो देख लिया, मुझे से ज्यादा टाइम नहीं मिलता. कई बार ऐसा हुआ है जब स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू लॉग इन टू द सिस्टम एंड एग्जिट. तो विद दैट कंपल्शन आई डू नॉट केयर. जैसे ही चार्ट ने बोला आई एम आउट, आई डोंट लुक इनटू इट. दैट्स हाउ आई स्टॉप माई सेल्फ. वो कहते हैं ना, चार्ट में उंगली करने से मैं खुद को रोक पाता हूँ. आई डू नॉट वांट माई इमोशंस टू गॉट इनटू इट. So if you want to make, for example, hypothetically, if you wanted to make an entry, that's your first entry. When it goes up and it started correcting, I would reduce my quantity. यहाँ पे मैं पूरा बॉक्स बनने दूंगा. यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तो I entered here, which is 91 rupees. Second entry यहाँ. Now this is a weekly chart. If I go on the daily chart, I can show you exactly where I entered. I entered ये जब ब्रेकआउट हुआ था और ये हाई को क्रॉस किया था. I entered here 1. I entered here 2. I entered here 3. and ये फोर्थ एंट्री मेरी 5 सेकंड से मिस हो गई थी और यहाँ पे अपर सर्किट फिर से लग गया था. तो आई मेड 3 पिरामिडिंग्स इन दिस. एंड यहाँ पे मेरा फर्स्ट एग्जिट हुआ और सेकंड एंट्री 50% क्वांटिटी आउट यहाँ, 50% क्वांटिटी आउट यहाँ. इफ आई लुक, लेट मी गो बैक इनफैक्ट वीकली, बिकॉज वीकली पे इजी हो जाता है. If I go to weekly and even I forget about what I entered, that doesn't matter. Even if you enter here, is price pay. So basically that's your 129%, 1 to 3 weeks. So 3 weeks, 129%, you're out. You don't care. Now what's going to happen, and I think I've told few people also that when it was making upper circuit, upper circuit, upper circuit for weeks, I said, watch this script. The moment it start hitting lower circuit, it will keep hitting lower circuit, lower circuit, lower circuit. और जब एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचेगा और जब वहां पे ये वापस से बॉक्स बनेगा, if you want, you can take entry again with a very minute stop loss. You can try your luck again, but let it, इसकी जितनी एनर्जी है इसको निकल जाने दो. बहुत ऊपर भाग गया है, बहुत बैड ब्लड आ चुका है इसमें. लेट दैट गेट क्लीन, बिकॉज यहाँ पे वो स्टूपिड लोग एंटर किए होंगे तो वो दे विल गेट स्लॉटेड. let it come, consolidate, and then when it gives the next move, then छोटे छोटे stop loss के साथ फिर से quantity build you can do if you want to. You don't have to. uh, it's psychology. What do you want? You want 10x return in 10 years or you want 2x return in 1 year? I'm the guy who prefer 2x return in 1 year and I want to get out. So if I can make 30% in 4 days and I am expecting 100% return in 4 months, I am happy to take my 30% in 4 days and put my money somewhere else. I do not hold stock 5-10 साल. वो मेरे पास वो स्क्रिप्ट नहीं. 1000-2000% वाली गोलियां मेरे को बेचते नहीं आती. This is what I do, and whatever I'm telling, I practically do it day by day basis. Whenever I get it, I don't, although I don't trade like intraday और छोटे स्विंग में नहीं खेल पाता because I don't have मेरा टाइमिंग क्लैश होता है.
But if you want, if you have a small money, you focus on money rotation. If you focus on money rotation, you will be able to increase your account much faster. So that's number one example. Let me go. How should I remove this? Yeah. Style. Again, same pattern, weekly, full bottom, A, B, C, बॉक्स बनाया, बॉक्स के बाद गया. नाउ टेल मी, अगर ये वॉल्यूम यहाँ आया है तो क्या करोगे आप? क्या इसमें बाहर निकल जाना चाहिए? लेट्स लुक एट दिस वॉल्यूम वन मोर टाइम. हालांकि ये चार्ट हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, बट लेट्स सी. ये 9 अगस्त पे है, हार्ली पे जाओ. What happened on 9th of August? So I'm removing this. We don't need this anymore. Look at the volume. है, काम करता है, पैटर्न है. एंड टेल मी ऑनेस्टली, आज से पहले कभी ऐसे ऐसे एनालाइज किया था चार्ट को? दैट्स हाउ यू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है. कोई इंसान करोड़ों का माल आपको बताने के लिए अपना लॉस करके कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा अगर उसमें बड़ा गेम नहीं होना है तो. और उसके बाद देखिए क्या हुआ स्टॉक के अंदर. यहाँ पे इतना वॉल्यूम आया, सॉरी वीकली, इतना बड़े वॉल्यूम के साथ सेल हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ सेल हुआ, ठीक है. लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ गया. और ये आई थिंक ये था इसका प्रीवियस हाई, ये ऑलरेडी इसको ब्रीच कर चुका है. So that's how it goes as far as pattern is concerned. Yeah, I've cut down a little bit my presentation at the later stage. I feel may not be able to continue more. So this is the pattern. If you want to use it, I honestly I couldn't find the name of this pattern. जैसे VCP मार्क में नवीनी का खुद का एक पैटर्न है, बॉक्स जो है वो डावर्स का है. I couldn't find a combination of many things in this. You can call cup and handle also. Yes, sometimes it looks cup and handle also. That's fine. You can say double bottom or running corrections. There are 1,000 names can be put in. बट ये मैंने बहुत मैं ये ऐसे भी चार्ट दिखा सकता हूँ आपको, बट बिलीव मी इट्स नॉट प्रैक्टिकल. आपको बहुत साल लगेंगे इस तरह के स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर है, ये आपको हर पॉइंट पे बाहर निकालेगा. यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले. So this is one pattern which you can trade very confidently with a very minimal stop loss. Now again, ये दिख रहा छोटा स्टॉप लॉस है, इट्स अ वीकली चार्ट. वीकली चार्ट में ये स्टॉप लॉस भी 10 से 20% का होगा. So you have to make in staggered entry, you have to make in staggered exit also. And then RR अगर फेवर करता है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करिए, and then you can trade. That's all. I think we finish 9:30. We started at around 9:39 for 10:41. Yeah, 1 hour. Good. That's all. So one humble request, honest response दीजिएगा. If you knew these things in the market, would you have shared with anyone for free or even for money? 50,000 1 लाख के लिए ऐसा क्वालिटी ऑब्जर्वेशन जो जो वाकई में बहुत मल्टीफोल्ड पैसा बना के दे सकता है, क्या आप किसी के साथ शेयर करते हैं? और अगर आपको लगता है कि ये शेयरिंग की कुछ वैल्यू है, तो मेरे सिर्फ आपसे 3 रिक्वेस्ट है. दैट्स माय लास्ट स्लाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम जो आपने मुझे दिया. ये प्रेजेंटेशन बनाते वक्त मुझे भी मेरे थॉट्स को कंसोलिडेट करने का मौका मिलता है. तो आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यू to your trading journey going forward, produce something worth of you. The all three things I want is make good for yourself and family. Don't trade their future on the keyword. Don't over trade. अपने फैमिली के फ्यूचर को मत खराब करिए. जब भी कुछ बनाते हो, अगर आप कैपेबल बनते हो, डू चैरिटी, हेल्प द नीडी. हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसा सिखा दो. कोई आ रहा है बंदा बोल रहा है मैं रिटायर हो चुका हूँ, गलत एडवाइस मत दो, ऑप्शन फ्यूचर्स में मत भेजो लोगों को, उनका लॉस बचा सकते हो. दैट ऑल्सो इज अ मनी. स्पेंड एटलीस्ट 3 hours ऑन वॉट यू हैव टॉट. अदरवाइज जो मेरी फर्स्ट स्लाइड थी ये डस्टबिन वाली, ये अगर आपने इसको प्रैक्टिकली अपने नोट्स बना के नहीं किया तो ये पूरा नॉलेज डस्टबिन में चला जाएगा, और मैंने जो भी मेहनत की ये सब वर्थ हो जाएगी. तो जस्ट फॉर माई सेक, प्लीज प्लीज स्पेंड some time, at least 3 hours, I would say, observing these things. Write down your notes. Keep following for next 6 months. And yes, after 3 months,
if this 3 months, if this doesn't make sense, by all means throw it to dustbin. Chetan, doesn't matter. Your money, your time, the future of your family matters a lot. Thank you so much. That's all from my side. I'll stop myself sharing. Thank you, Chetanji. That was an excellent presentation which we have done. Uh, I would request Tarun sir to continue because currently I am having a little low sugar. It'll give me some time to recover. Tarun sir, please, if you can go ahead with your presentation. ओके ठीक ठीक ठीक। चेतन जी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन रहा। और ये जो 2 ट्रेड्स आपने अभी लास्ट में दिखाया, ये आपने मतलब हमने आप लोगों के साथ ट्रेड किए थे, तो वी आर लकी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं कुछ स्कैनर अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। उन स्कैनर्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि स्कैनर्स पे डिपेंड मत हो जाना। अपना मैनुअल वर्क जो कर रहे हो वो करते रहो। स्कैनर सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए हैं, बट आप ये सोचो कि मैं स्कैनर्स पे ही काम करूंगा तो वो मत करना, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैनुअली चार्ट हम लोग भी देखते हैं, वीकेंड पे बैठ के 200 500 600 चार्ट देखते हैं, तो आप भी वैसे ही करना। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपना। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा नया है मेरे लिए, तो मेरे को एक बार कंफर्म कर देना स्क्रीन शेयर मेरा विजिबल है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है तब जी। ओके ओके। सो अभी मैं आप लोगों को 4 स्कैनर के बारे में बताऊंगा। ये चारों स्कैनर जो हैं अभी ट्विटर वगैरह पे मैंने नहीं पोस्ट किए हैं, ये एकदम फ्रेश स्कैनर हैं। जो पहले आप लोग यूज़ कर रहे हो वो सब स्कैनर डिफरेंट हैं। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट स्कैनर है बुलिश मोमेंटम। इसमें ये वो लोग यूज़ करें इस स्कैनर को जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्कैनर के अंदर स्टॉक बहुत कम आएंगे, लेकिन जो स्टॉक आएंगे वो क्वालिटी स्टॉक आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक आज स्कैनर में आ गया तो उसको आपको आज ही ट्रेड करना है या अगले दिन ट्रेड करना है, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी स्टॉक्स आएंगे आप उनको एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, और कुछ दिन बाद जब वो थोड़ा करेक्शन ले लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, जो कि सब स्टॉक्स में होता है एक बड़े ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद वो अगेन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स आएंगे इसमें, आप इनको सेव करके रख सकते हो आने वाले कुछ दिनों के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अभी आप जैसे देख रहे हो इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ उसके कुछ प्रीवियस रिजल्ट, उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक, इसमें मैंने अभी ये कंडीशंस एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग स्कैनर यूज़ करते हैं वो समझ जाएंगे, और जो लोग अभी नए हैं स्कैनर यूज़ नहीं करते हैं तो उनको मैं बताऊंगा तो भी उनको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ स्कैनर। अगर किसी को स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो स्कैनर से रिलेटेड तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। अभी ये लास्ट 9 मंथ्स का डाटा है इसमें, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं इसके कुछ रिजल्ट देखने। अभी लास्ट जो रिजल्ट इसमें स्टॉक आया रीजन बाय, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी स्टॉक आएगा जब भी स्कैनर में, तो आपको उसका मंथली वीकली ट्रेंड देखना है, ठीक है। और मैं जैसे सबको मालूम है मैं मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 4 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, जिसमें 18 पीरियड, 55 पीरियड, 100 और 200, ठीक है। ये ग्रीन लाइन जो है 18 पीरियड है, 15 वाइट एंड रेड जो है 100, और फिर ब्लू 200। अगर मेरे को मैं जो भी स्टॉक ट्रेड करूंगा वो उस तरह के स्टॉक ट्रेड करूंगा जो कि मंथली, वीकली एंड डेली तीनों टाइम फ्रेम पे 200 के एवरेज के एटलीस्ट ऊपर होने चाहिए, ठीक। सो अब ये स्टॉक आपको दिख रहा है, ये स्टॉक ने करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद में ये चारों एवरेजेस के नीचे आया, इसका मतलब ये यहाँ पर वीक हो गया। बट अगेन ये स्टॉक चारों एवरेज के ऊपर आकर के यहाँ खड़ा हो गया, इसका मतलब कि इसका ये जो डाउन ट्रेंड था ये यहाँ पर फिनिश हो गया, जिसको हम बोलते हैं
करेक्शन फिनिश हो गई है, अब ये स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है। अब ये स्टॉक मेरे स्कैनर में जो आया, आप ये देखो क्लियर आपको दिख रहा है, ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसकी जर्नी यहाँ से जो कोविड फॉल आया उसके बाद इसने जो जर्नी अपनी स्टार्ट की है, ये क्लियर अब ट्रेंडिंग स्टॉक है और ये विद वॉल्यूम स्कैनर में आया था यहाँ पर। तो ये स्टॉक को आप अपने पास रख सकते हो वॉच लिस्ट में, इवन पोजीशन भी बना सकते हो आने वाले कुछ टाइम के लिए, जिसमें कि ये अच्छा रनअप देके जाए। ठीक है, एंड क्वेस्टकॉर्प, मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि किस तरह के इसमें स्टॉक्स आ रहे हैं। अब आप ये देखो, ये स्टॉक्स आरएस पॉजिटिव है, प्लस स्प्रेड चार्ट पे भी इसका जो पोजीशन है वो बढ़िया है, और क्लियरली आप देख रहे हो अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब ये स्टॉक यहाँ पर आकर के इसने कंसोलिडेट किया। अब मेरे को स्टॉक्स क्या चाहिए जो मेरे को यहाँ मिल जाए इस एरिया में, मेरे को ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद मिलता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर यहाँ मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो अब ये जब चार्ट मेरी नज़र में आया ना, तो ये जब कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पर, तो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें करेक्शन हुआ, ये प्राइस वाइज, ये टाइम वाइज, एंड अब यहाँ से ये ऊपर निकलने को रेडी है। और वहीं सडनली जब मेरे ये स्कैनर में भी आ गया, आई थिंक 15th को, तो ये 15th को यहाँ हमारे स्कैनर में आया इस कैंडल पे। अब इस कैंडल पे आप ये देखो कि जो लोग ऑल टाइम हाई को ट्रेड करते हैं, ये स्टॉक ने उस दिन ऑल टाइम हाई भी ट्रेड ब्रेक नहीं किया था, बट अगर ये मेरे स्कैनर में आया और विद वॉल्यूम आया तो ये मेरे को ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि स्टॉक अब ट्रेंडिंग है और ये चारों एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं वही स्टॉक लूंगा जो चारों एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, जो यहाँ बीच में कहीं होंगे या ये 200 के नीचे होंगे उसको मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हमारे को इसमें मिला। एंड देन अतुल, एंड आप देखो ये नैम इंडिया, कामधेनु, ये सब स्टॉक्स आपको अभी रिसेंट मालूम होगा, इन सब ने अच्छे रिटर्न दिए हैं लास्ट कुछ दिनों में। अब ये बजाज इलेक्ट्रिकल एंड सुंदरम फास्टनर, अब सुंदरम फास्टनर का तो चार्ट सब लोगों को मालूम ही होगा, इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था अभी कुछ दिन पहले। अब आप ये देखो, ये कैंडल पे हमारे को सुंदरम फास्टनर आया, और इस स्कैनर की खास बात क्या है आप देख रहे होगे कि डेली ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें 10-10 20-20 स्टॉक आ रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक आ रहे हैं, एक या दो स्टॉक आ रहे हैं आपके पास। तो इन स्टॉक को आप इजीली अपने पास रख सकते हो नोट करके, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टेक्निकल स्टडी है उसके अकॉर्डिंग आप इनको ट्रेड कर सकते हो। तो ये इस तरह का है, मैं कुछ पीछे के एग्जाम्पल भी आपको दिखा देता हूँ। LTTS, अब ये LTTS का देखो 15th ऑफ जुलाई को आया था स्कैनर, यानी इस कैंडल पे आया था, नेक्स्ट डे ये गैप अप हुआ और उसके बाद आप ट्रेंड देखो। तो मैंने जैसे बोला कि इसमें सारे क्वालिटी स्टॉक्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आपको इसमें वीक स्टॉक मिलेगा। तो ये स्कैनर डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि स्टॉक्स एक दो स्टॉक्स आएंगे डेली आपको। अब जैसे ये एक स्टॉक है, ये एक स्टॉक है, एक स्टॉक है, ये भी एक स्टॉक है, लेकिन ये सारे क्वालिटी स्टॉक होंगे। अब हिसाब इंडिया 26 अगस्त को, अब ये कैंडल पे आपको हिसाब इंडिया मिला, अब पूरे स्कैनर में ये एक ही स्टॉक आया उस दिन। तो भी इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो कुछ स्कैनर हैं उसमें 20 स्टॉक आ रहे हैं, 25 स्टॉक आ रहे हैं, तो फिर उसका मैं क्या करूंगा? मेरे को तो ऐसा कोई स्कैनर चाहिए जिसमें एक दो स्टॉक आ जाएंगे। तो अब आप देखो ये एकदम बढ़िया से ब्रेकआउट वाला स्टॉक आपको मिल गया। अब इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो, या यहाँ पर एक फर्स्ट एंट्री आप यहाँ ले सकते हो, वो जो भी आपका टेक्निकल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया बुलिश मोमेंटम, कि इन सारे स्टॉक्स में आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा, ये उस तरीके के स्टॉक है। सेकेंड जो मेरा स्कैनर है, इसका नाम मैंने दे रखा है कमिंग आउट ऑफ रेंज। ये एक वीकली चार्ट पर स्टॉक कुछ रेंज में होंगे, वहां से ये ब्रेकआउट दे रहे होंगे स्टॉक, इस तरीके के स्टॉक आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें अब आप देखो अभी रिसेंट जो एग्जांपल आ रहे हैं, अमृतांजन हेल्थ। अब ये लास्ट वीक का हम डाटा देखते हैं इसमें, मतलब जो ये वीक अभी फिनिश हुआ है। अब आप देखो ये स्टॉक आपको यहाँ मिल गया, ये काफी वीक से ये एक रेंज में था, एंड इसका आप देख रहे हो कि आरएस वगैरह सब पॉजिटिव है, इवन वीकली चार्ट में भी पॉजिटिव है।
और इस कैंडल पे मेरे को ये स्टॉक मिल गया। अब ये कैंडल देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक कहाँ जाना चाहिए आने वाले दिन में? इजीली अगर आप कोई भी टेक्निकल स्टडी लगाते हो, अगर मैं जैसे डेली चार्ट में भी इसको लगाता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, यहाँ पर ये करेक्शन में था। अब ये जो फॉल आया इसमें, ये जो फॉल आया, ये जैसे अभी चेतन जी ने भी अपने उसमें बताया, तो ये आपको उस स्टडी के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये स्टॉक गैप डाउन हुआ, अगर ये स्टॉक यहाँ से गैप डाउन हो गया है, इसमें कोई बैड न्यूज आई है या इसमें कुछ फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में या कुछ भी इशू है, तो ये स्टॉक यहाँ आकर के यहाँ खड़ा क्यों हो गया? जो नए लोग हैं मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये स्टॉक यहाँ आकर के यूँ खड़ा क्यों हो गया? ये स्टॉक यहाँ से नीचे क्यों नहीं आया? अब ये स्टॉक यहाँ आकर खड़ा हो गया और मेरे को ये स्कैनर ने बता दिया, इस कैंडल पे ये लास्ट कुछ वीक्स का हाई ब्रेक करके यहाँ इसने क्लोज दे दिया ऊपर। अब जब नेक्स्ट वीक यहाँ एक बड़ी कैंडल बन जाएगी लोगों की नोटिस में, तब आएगा। बट ये स्कैनर ने आपको ये पहले ही ला करके दे दिया कि यहाँ इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। अब मानो कल मंडे को स्टॉक ओपन होता है और ये इसके हाई के ऊपर ओपन होता है, या इस मान लो ओपन नीचे होता है और हाई जब भी क्रॉस करता है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। और इसमें भी आप देख रहे हो स्कैनर में कोई ज्यादा स्टॉक नहीं आ रहे हैं, ओनली 10 स्टॉक्स आ रहे हैं, और ये भी सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं। इसकी भी जो मैंने इसमें स्कैनर में कंडीशंस डाल रखी हैं, सारी क्वालिटी वाली कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत कम स्कैनर मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। अब और हम कोई देख लेते हैं, जैसे गैलेक्सी देख लेते हैं। अब गैलेक्सी को देखो आप, ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, ये वीकली रेंज में था, अब ये रेंज से ब्रेकआउट दे दिया इसने। और ब्रेकआउट भी आप देख रहे हो, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, ये एक जेन्युइन, मतलब जिसे कहते हैं ट्रेडेबल ब्रेकआउट है। यहाँ पर इजीली आप ट्रेड कर सकते हो। नीचे वॉल्यूम देखो आप कितना, इसमें अच्छा वॉल्यूम है। तो इस तरीके के स्टॉक जो है आपको इस स्कैनर में मिल जाएंगे। कुछ और देख लेते हैं। अगेन अब ये देखो, आप ये भी स्टॉक अप ट्रेंड में था, ये यहाँ पर आकर के एक रेंज में आकर खड़ा हो गया और ये इसी वीक इसने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये स्टॉक भी जो है इनकी जो क्वांटिटी होगी बहुत कम होगी, 5 7 10 6 7 ऐसे स्टॉक आएंगे, लेकिन सारे अच्छे स्टॉक आएंगे। तो ये हो गया मेरा सेकंड स्कैनर। अभी थर्ड स्कैनर, इसका नाम मैंने दिया है स्विंग एक्सपेक्टेड। अब इन स्टॉक्स में क्या है कि आने वाले कुछ दिनों में स्विंग, एक अच्छा सा स्विंग मिलना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने जो आप देखोगे, इसमें भी जो स्टॉक्स आएंगे आपको, ये 3 4 5 इतने स्टॉक आएंगे। मतलब स्कैनर ये सारे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बहुत कम स्टॉक आए। अब जैसे इनमें हम देखते हैं दीपक फर्टिलाइजर। अब आप ये देखो, दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट, इस कैंडल पे आपको स्कैनर ने निकाल के दे दिया। अब कल अगर मान लो ये चार्ट ब्रेकआउट करता है यहाँ से और ये कैंडल यहाँ बड़ी सी एक फॉर्म करता है, तब जाकर के लोगों की नजर में आएगा ये। बट आपको ये यहीं पर बता दिया इसलिए कि मैं यहाँ ऊपर जाने को रेडी हूँ, तो आप इसको यहीं ले सकते हो। और नीचे आप देख रहे हो इसका, इवन कल निफ्टी में भी करेक्शन थी, उसके बावजूद इतनी बुलिश कैंडल दे करके गया है और नीचे वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा आया है, ठीक है। तो ये एक इसमें हमारे को अच्छा स्टॉक मिल गया। एंड गुजरात अंबुजा देख लेते हैं। अब गुजरात अंबुजा देखो आप, सेम एग्जैक्टली जहाँ दीपक फर्टिलाइजर है, इसमें भी अभी कोई बड़ा मूव आया नहीं है। बट नीचे देखो, एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ज्यादा आया है इसमें भी कल, और डाउन डे था आप सबको मालूम है। उसके बावजूद तो ये भी एक क्वालिटी स्टॉक हमें मिल गया, जिसमें आने वाले कुछ दिन में एक अच्छा स्विंग एक्सपेक्टेड है। एंड ऐसे ही हम सागर सीमेंट देख लेते हैं। अब अगेन सागर सीमेंट में अब ये कैंडल देखिए, ये कैंडल एक डाउन डे वाले दिन आई है, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन कर ली, ये टाइम यहाँ स्पेंड कर दिया। अब इस स्टॉक को कहाँ जाना है? और नीचे आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम है जो उससे बढ़ करके आया है। तो ये भी एक आपको अच्छा स्टॉक मिल गया। तो इसलिए मैंने इसका नाम जो दिया है एक्सपेक्टेड, स्विंग एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। और जो स्टॉक्स इसमें आ रहे हैं वो भी सारे क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसको आपको ज्यादा दिन तक होल्ड करने वाले स्टॉक्स हो सकता है ये ना हो, बट अभी इसमें कोई ऐसी बड़ी कैंडल बनी नहीं है, तो वो बड़ी कैंडल बनने से पहले आप स्टॉक को पकड़ सकते हो इस स्कैनर्स के थ्रू। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्कैनर। अब एक और स्कैनर मैं दिखाता हूँ, ये लास्ट स्कैनर है। ये स्कैनर है इन्वेस्टमेंट रिवर्सल्स। इसका नाम मैंने इन्वेस्टमेंट रिवर्सल इसलिए दिया है, ये स्टॉक आपको 1 2 दिन की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। जो लोग इन्वेस्टमेंट, प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आज मैं स्टॉक लूं और आराम से 6 8 महीने साल भर होल्ड करूं, उस टाइप के स्टॉक्स निकाल के देगा ये आपको। और
एंट्री पॉइंट में उसका आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपको कहाँ पर एंट्री करनी होगी। अब इसमें मैंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे ये डेली की कंडीशन है जो लेटेस्ट है, इसको मैं अभी डिसेबल करके मैं आपको इसके कुछ पहले की दिखाता हूँ। जैसे ये 4 मंथ्स एगो, 5 मंथ्स एगो, 6 मंथ्स एगो, ये सारी मंथली कंडीशंस हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला स्कैनर है ये। अब इसमें आप ये देखो, मैंने इसमें 4 मंथ्स की जो कंडीशन है उसको ऑन किया हुआ है, और अब इसमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं, और ये जितने भी स्कैनर्स हैं इसमें सारे RS पॉजिटिव स्टॉक आएंगे। इसमें RS की जो फिल्टर्स हैं वो सब ऐड किए हुए हैं, तो आपको इसमें RS के लिए कोई सेटिंग को डेली चेंज करना या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। अब आप देखो वेंकीज, मैं इसका थोड़ा सा पहले आपको लॉजिक समझाता हूँ कि ये किस तरह के स्टॉक्स आएंगे इसमें। इसको हम मंथली चार्ट पे चलाएंगे। अब मंथली चार्ट पे ये मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी है यहाँ पर 20 पीरियड, 14 पीरियड और 9 पीरियड। 9 पीरियड का हाई नॉट क्लोज, ऐसे ही 20 और 14। जब भी मंथली चार्ट पर कोई भी स्टॉक, जैसे ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब ये तीनों जो एवरेजेस हैं 9, 14 एंड 20, ये क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है RSI। RSI 50 लेवल जब यहां से क्रॉस करेगा, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ये 50 RSI है, 50 RSI क्रॉस करेगा तब आप यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बना सकते हो स्टॉक के अंदर। मतलब जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांच यहाँ पर आप ले सकते हो। सेकंड ट्रांच आपको ऐड करनी है जब ये बोलिंगर बैंड जिस दिन ब्लास्ट होगा, जिस भी मंथ, तब आपको इसमें एंट्री करनी है, और उसके बाद इसको आपको ट्रेल करना है तब तक जब तक ये 9 SM है, ये जो ब्लू लाइन है ये 9 SM है, ये 9 SM में ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप इसको होल्ड लेके चलो। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल अभी शेयर करूंगा आपके साथ, बहुत एग्जांपल शेयर करूंगा, इसलिए मैंने इसका नाम जो दिया है वो इन्वेस्टमेंट रिवर्सल दिया है कि स्टॉक जब रिवर्स ले लेगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ जाएगा, इसमें हम तब एंट्री करेंगे। अब जैसे इसमें कुछ अभी रिजल्ट आ रहे हैं, ये मैं पास्ट के दिखा रहा हूँ, जब मैं इसको लेटेस्ट ऑन करूंगा तो ये करंट वाले स्टॉक दिखाएगा। ये मैं आपको जस्ट प्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए गैब्रियल, अब ये गैब्रियल इंडिया, ये डाउन ट्रेंड था, ये जो पिंक लाइन है और ये जो येलो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसको क्रॉस करके जब क्लोजिंग आ गई, जैसे कि आप ये मंथली चार्ट है तो एक एक महीने की कैंडल्स हैं, अब ये कैंडल यहाँ मंथली के ऊपर इसने क्लोज दे दिया, ये येलो वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन। ठीक है, अपने को ये देखनी है, ये ब्लू वाली अपने को एंट्री के लिए नहीं देखनी है, इसको हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। यहाँ आपने एंट्री कर ली, ठीक, जहाँ एंट्री करने के बाद में, और फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ करी और सेकंड एंट्री हम कहाँ करेंगे जब यहाँ पर ये बोलिंगर बैंड के ऊपर जाकर के क्लोजिंग आएगी, जैसे कि इस कैंडल पे आएगी। अब मैं इसके कुछ ऐसे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आप ये देखो काबरा, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर जाकर इस कैंडल पे, यानी कि ये सितंबर 2020 में ये 20 और 14 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर आके इसने मंथली क्लोज दिया यहाँ पर इस कैंडल पर। उसके बाद आप देख रहे हो इसका रनअप, और एक भी बार अभी तक इसमें 9 SMA जो है ब्रेक नहीं हुआ। तो इस तरह के जो स्टॉक्स है ना, और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब ये वाला सीन बनेगा ना किसी भी चार्ट पे, जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉस होंगी यहाँ पर, तब आप जब डेली चार्ट जाकर देखोगे वहां आपका RS पॉजिटिव हो रहा होगा उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो ये सितंबर और अक्टूबर के आसपास हम इसमें चलते हैं डेली चार्ट पे। ये देखो आप, ये अक्टूबर है 20, और यहीं से इसका RS पॉजिटिव, जो RS हम लोग यूज करते हैं ARS और SRS, यहीं से इसका RS पॉजिटिव। और भी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल आपको, BLS इंटरनेशनल। अब आप देखो इसका BLS इंटरनेशनल का मंथली चार्ट, ये इसका मंथली चार्ट है, ये आपकी पहली एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री आपने इस कैंडल पे कर दी, और उसके बाद रनअप देख लो आप। क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है दो, ये क्रॉस होकर अगर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग आ गई, इसका मतलब स्टॉक का डाउन ट्रेंड अब यहाँ से खत्म है। मतलब प्राइस वाइज टाइम हो सकता है यहाँ स्पेंड करे, ये इसने यहाँ टाइम स्पेंड किया, इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री ले लूंगा ताकि ये स्टॉक मेरी नजर में रहे। और जैसा मैं बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, तो इसमें हम एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने देख लिया कि इसमें किस तरह का मूव है। अब ये जो स्टॉक है, ये इसको अगर मैं डेली चार्ट पे लगाता हूँ
तो डेली चार्ट पे ये पूरा ये जो 2-3 महीने का कंसोलिडेशन दिख रहा है वो ये कंसोलिडेशन है। और मूविंग एवरेजेस में जो हम यूज करते हैं, एंट्री हमारे को तब लेनी होती है जब ये सारी मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं संगम एरिया। इस एरिया में हमारे को एंट्री लेनी है। और उसके बाद जब ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, अब जैसे ये पूरा एक्सपेंड है, अब मैं इसको ट्रेल करता रहूंगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको ट्रेल करूंगा। कब तक ट्रेल करूंगा? जब तक इसमें 9 पीरियड का SMA क्लोजिंग बेसिक्स पे ब्रीच नहीं होता है। या आप 5 SMA भी रख सकते हो। 5 SMA पर आप हाफ एग्जिट वहां कर सकते हो और 9 SMA के बाद आप फुल्ली एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। एंड कुछ और चार्ट देखते हैं। विनाइल केमिकल, अब इसमें देखो सेम वही चीज है, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ। अब इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि ये ब्लास्ट भी होगा, यानी कि बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आई, अपर बैंड के ऊपर, और प्लस ये एवरेज भी ये एक ही सिंगल कैंडल ने कर दिया। उसके बाद देखो आपने यहाँ एंट्री ले ली और ये पूरा इसने जो मूव है आपने इसका कैप्चर किया, बिकॉज 9 SMA के नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दिया। अब यहाँ पर देखो जब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे ना, उस समय ये सारी एवरेजेस पास में है, तो ये जो हमारा क्लस्टर है एवरेजेस का, यही स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे स्टॉक मूव करता चला जाएगा तो ये 9 SMA हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो इस कैंडल पे इसने एग्जिट दिया, बट यहाँ पर नीचे एक एवरेज आ रहा है। तो ये चीज हमें देखनी है, ये चीज हमें प्रैक्टिस करने से आएगी। जब ये एवरेजेस बहुत दूर हो जाएंगी, जब ये ट्रेंड पूरा काफी हद तक मतलब ट्रेंड पकड़ लेगा स्टॉक, तो ये एवरेजेस दूर हो जाएंगी 20 की और 9 की। तब अपने को 9 को स्टॉप लॉस रखना है। जब तक ये एरिया हमारे पास में है तब तक हम इस स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे पोजीशन को, और उसके बाद अपने मूव देखेंगे। ठीक है। कुछ फेवरेट स्टॉक भी दिखा देता हूँ। बिरला सॉफ्ट, अब बिरला सॉफ्ट को आप इस कैंडल पे पकड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि आप ये देखो इस कैंडल पे ये एवरेजेस का क्लस्टर बना यहाँ पर, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अब फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ हो गई, सेकंड एंट्री मेरी यहाँ हो गई, और आज तक देखो इसने अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। अब ये कन्विक्शन आपको कैसे आएगा? अगर मैं डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक को, और ये कन्विक्शन मेरे को, अगर मैं ये, तो चलो ठीक है, अब RS का हम इसमें देखते हैं। देखो RS इसमें February 20 में यहाँ पॉजिटिव हुआ, February 20। ठीक है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि RS पॉजिटिव स्टॉक में पॉजिटिव होते ही कैसे एंट्री करनी है, कैसे पता चलेगा? तो इससे आप वो भी पता कर सकते हैं। अब ये देखो, ये February 20 और ये देखो June-July 20। क्यों? क्योंकि वो कोविड वाला फॉल आ गया था यहाँ पर ये। ठीक है। तो उसके बाद ये जून जुलाई, और यहाँ से ये RS पॉजिटिव चल रहा है अभी तक, और प्लस ये 9 SMA भी ब्रीच नहीं हुआ। अब कुछ ऐसे स्टॉक पे भी दिखाऊंगा जो ये जर्नी है जिनकी अभी स्टार्ट हो रही है, ये तो सब हो चुका। अब ये देखो NIIT, इसमें भी सेम हुई है। इन एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग आई और अपर बैंड के ऊपर भी क्लोजिंग आई, और इसको हमने पूरा ट्रेल किया। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये कोविड वाला फॉल है, सॉरी ये कोविड वाला फॉल नहीं है, ये 21 वाला फॉल है। ये 20 वाला फॉल ये वाला है, तो ये मिस्टेक है। ये आप पूरा इसको देख रहे हो, यहाँ इस कैंडल पे अगर आप कह सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन फिर भी आप देखो यहीं पर आके इसने क्या बोलते हैं क्लोज दिया, और उसके बाद अगेन जर्नी स्टार्ट। तो अगेन जर्नी, अगर मेरा यहाँ एक कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो मैं वापस एंट्री करूंगा जब 9 SMA के ऊपर वापस से प्राइस निकला, मैं वापस एंट्री कर लूँ और मैं फिर इसको पूरा ट्रेल करूँ। तो अब एक स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें ये मूव अभी स्टार्ट हुआ है। आप देखो किटेक्स गारमेंट। अब किटेक्स गारमेंट में ये पूरा डाउन ट्रेंड था, ये टाइम वाइज करेक्शन हो गई, और अब यहाँ देखो इस कैंडल पे इसने विद वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना अच्छा वॉल्यूम है, ये एवरेजेस और ये अपर बैंड ये ब्रेक कर दिया। तो ये स्टॉक में अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री लेकर के बैठ सकते हो, और जब तक ये 9 SMA इसका ब्रीच नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, इसको आप पूरा ट्रेड करो। एक स्टॉक ये है, अब ये देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड है, जे इसका टाइम वाइज हो गया, एंड अगेन अब यहाँ से ये ऊपर निकलने को रेडी है। और इस मंथ का वॉल्यूम देखो कितना अच्छा वॉल्यूम है, हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो इसमें अभी यहाँ पर माल खरीदा जा रहा है, तो ये इसको मैं एक रिवर्सल मानूंगा। प्राइस भी गया, टाइम भी गया, अब यहाँ से ये ऊपर निकलने को तैयार है, इसको मैं ट्रेल करूँ। इस तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे कहाँ से? वो आपको इस स्कैनर से मिलेंगे। ये कुछ मैंने पास्ट के दिखाए आपको। अब इसमें भी अगर जैसे अब हम देखें सेंचुरी टेक्सटाइल है या लाओपाला है, मैं लाओपाला का चार्ट, लाओपाला में देखो इस कैंडल पे ये ब्रेक हुआ था, उसके बाद मैंने इसको फर्स्ट एंट्री यहाँ करी, बट यहाँ पर
ये नोटिफिकेशन क्या है मुझे समझ नहीं आया। हेलो हेलो, किस चीज का नोटिफिकेशन? ये कुछ नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों को नहीं विजिबल हो रहा है? नहीं, हमारे को नहीं एनोटेशन पता। रिक्वेस्ट, एनोटेशन रिक्वेस्ट है कुछ। कैंसिल कैंसिल कर दो उसको, कैंसिल कैंसिल कर कर दो। दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो अभी लाओ पाला जो है इसमें अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये देखिए जो मैंने बताया कि आप इस तरीके का जो भी पैटर्न होगा वहां पर आपको एंट्री लेनी है। तो ये मंथली चार्ट है। अब ये इस स्कैनर में भी हमारा आया हुआ है, यानी कि ये रिवर्सल पैटर्न है। अब ये स्टॉक में जो भी ये करेक्शन था टाइम वाइज, इस ये भी ऑलमोस्ट अब यहाँ फिनिश होने को है। और जब भी मेरे को ये इसके ऊपर ऑलरेडी देखो ये ब्लास्ट दे चुका है, तो इस कैंडल पे मेरा एक इसमें एंट्री बन जाना चाहिए था। और अभी मैं इसको पूरा ट्रेल कर रहा हूँ जब तक ये 9 SMA में ब्रीच नहीं होता है। ये लास्ट 3 कैंडल देखो, ये 9 SMA के ऊपर ये लो भी वहीं लगा, ये लो भी वहीं लगा, एंड अगेन स्मूथ इस मंथ वापस से इसमें ऊपर। तो ये है। अब ये स्टॉक्स मेरे को इस स्कैनर से मिलेंगे, जो मैंने ये स्कैनर बनाया है। इसको अगर आप डेली को ऑन कर दोगे यहाँ पर, अब जैसे ये स्टॉक मिला मुझे FDC, अब ये FDC है। FDC में आप देखो ये अभी इस कैंडल पे ये क्रॉस हो रहा है, जो 20 और 14 का मूविंग एवरेज है, ये इस कैंडल पे क्रॉस हो रहा है। तो ये मेरे को एक एंट्री पॉइंट मिल गया। और लेकिन मेरे को एंट्री करनी है जो इस सेटअप पे जाकर के, मैं एंट्री इस सेटअप पे करूंगा। अब आप देख रहे हो ये RS पॉजिटिव स्टॉक है और अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं यहाँ करूंगा, पर लेकिन जो भी आप अपना टेक्निकल यूज करते हो टेक्निकल जरूर लगा सकते हो इसके ऊपर। बट मैं सिर्फ आपको बेसिक इसमें ये चीज बता रहा हूँ कि रिवर्सल हम कैसे पकड़ेंगे स्टॉक का, कि स्टॉक एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में था और वापस से ये अप ट्रेंड में आ गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ रैली गियर। अब रैली गियर को आप देखो, ये देखो रैली गियर में एग्जैक्टली ये हुआ था। ये डाउन ट्रेंड था, ये यहाँ पर आकर के स्क्वीज हो गया बैंड, और ये जो एवरेजेस लगा रखी है 14 और 20, इसके ऊपर क्लोजिंग आई। नेक्स्ट मंथ ये यहाँ ब्लास्ट किया और उसके बाद आप देख रहे हो क्या मूव चल रहा है। और 9 पीरियड का जो SMA लगा रखा है, ये आप देखो ये ब्लू लाइन, ये अभी तक इसमें ब्रीच नहीं हुई। ये जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं होगी, अब इसमें क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, तो मैं इसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर दूँ। एंड एवर रेडी, अब क्योंकि मेरे को फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, मैं फंडामेंटल चेक नहीं करता हूँ, तो मैंने ये टेक्निक अपने लिए यूज़ करता हूँ। और इसमें भी आप देखो ये डाउन ट्रेंड, ये इसके ऊपर क्लोजिंग आई, फर्स्ट एंट्री मेरी ये हो गई, सेकंड एंट्री मेरी ये हो गई। अब मैं इसको पूरा ट्रेल कर रहा हूँ, एंड अभी तक आप देख रहे हो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये ब्रीच नहीं हुई। अभी ये देखो ग्रेविटा, ये डाउन ट्रेंड, ये टाइम प्राइस वाइज, ये टाइम वाइज करेक्शन, इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई है और अभी तक आप देख रहे हो ये 9 SMA में ब्रीच नहीं हुआ है, ब्लू लाइन। अब इसमें देखो आप लास्ट टाइम ये डाउन ट्रेंड, जहां पर ये प्राइस वाइज, ये इस कैंडल पे ये मेरी फर्स्ट एंट्री, ये मेरी सेकंड एंट्री, और ये मेरा एग्जिट यहाँ। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए है स्ट्रेटजी, इसको ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि जहां एंट्री लो वहां 2 महीने 3 महीने उसके बाद स्टॉक कहीं जाए नहीं। ठीक है, तो ये 4 स्कैनर हैं, 4 अलग अलग यूसेज के लिए, इनको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो नीचे की कंडीशंस है, ये जो लेटेस्ट वाली कंडीशंस हैं, ये तो अभी जो स्टॉक्स इस मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहे हैं इसमें तो वो स्टॉक आ जाएंगे। लेकिन अभी जो कर चुके हैं ऑलरेडी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, उसके लिए मैंने ये कंडीशंस इसमें दे रखी हैं। जैसे ये 4 मंथ्स है, अब ये 4 मंथ्स पहले ये इसमें रिवर्सल आ गया है स्टॉक्स में, ये वो वाले स्टॉक हैं ये सारे। अब इनमें आप देख रहे हो सारे अच्छे स्टॉक हैं जिनको अभी हम देखते हैं रोज 10% बढ़ रहे हैं, 20% बढ़ रहे हैं, जैसे बैंकीज है। तो जब भी ये आपके स्कैनर में आएंगे ना, उसके 1-2 महीने बाद इनमें अच्छा मूव स्टार्ट हो जाएगा, जब जब RSI 50 क्रॉस कर जाएगा ऊपर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये बैंकीज में, यहाँ पर ये हमारी एंट्री हुई फर्स्ट,
उसके बाद 3-4 महीने स्टॉक ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगेन अब यहाँ हुआ ब्लास्ट और नेक्स्ट मंथ देखो इसने क्या किया। और अभी उसके बाद जो करेक्शन आई, वो करेक्शन का लो देखो, वही एग्जैक्ट 9 SMA, ये 9 SMA पे आगे रुका और देन वापस। ऐसे ही आप देख रहे हो पावर मैक, आंध्रा सीमेंट, मुथूट फाइनेंस, तो सारे अच्छे स्टॉक आ रहे हैं इसके अंदर। गोदरेज एग्रोवेट देख लेते हैं एक बार। ये देखो गोदरेज एग्रोवेट, इसमें भी वही चीज़ है, जहाँ पे मेरी एंट्री हुई, क्योंकि ये पिंक और ये येलो के ऊपर है, एंड सेकंड एंट्री यहाँ हुई और अभी ये स्टॉक रनिंग में चल रहा है। तो ये इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो और अच्छे स्टॉक निकाल सकते हो जिनमें अभी रिवर्सल हो रहे हैं। जैसे इंडियन होटल है, डेल्टा कॉर्प है, एक बार डेल्टा कॉर्प को देखते हैं। इनमें ये कंडीशन 4 महीने पहले बनी थी, लेकिन मूव आना अब स्टार्ट हो रहा है इन स्टॉक्स में। ये देखो, ये यहाँ क्रॉस हुआ इसके ऊपर, और अब ये हमारा इस मंथ, अगर ये इस मंथ की क्लोजिंग यहाँ इसके ऊपर आ जाती है तो ये स्टॉक मेरा एक सेकंड एंट्री मेरी यहाँ हो जाएगी, और फिर मैं इसको ट्रेल करूंगा ये पूरा 9 SMA जब तक ब्रीच नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये स्टॉक्स देख सकते हो और इनमें काम कर सकते हो। और प्लस अगर अभी करंटली इन सारे स्टॉक्स में एंट्री करनी है आपको, तो उसके लिए मैं फिर डेली चार्ट पे आ जाऊंगा। और अभी आप डेली चार्ट पे आप इनका ट्रेंड देख ही रहे हो, RS पॉजिटिव है और ये अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है, वापस रिटेस्ट करता है तो आप एंट्री करते हो, वो जो भी आप अपना टेक्निकल यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये रिवर्सल हो गया, ये बुलिश मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो गए, ये जो कमिंग आउट ऑफ रेंज अभी निकल रहे हैं वीकली रेंज से बाहर, वो स्टॉक हो गए, और ये वो स्टॉक हो गए जिनमें अभी स्विंग एक्सपेक्टेड है। अब ये वाले जो स्कैनर है, ये स्कैनर आप बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि इन स्टॉक्स में अभी मूव बना नहीं है, बट आने वाले कुछ दिन में मूव बनने वाला है, तो ये स्विंग के लिए। तो मुझे ये शेयर करना था अपने स्कैनर, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो स्कैनर से रिलेटेड तो ग्रुप में आप मेरे से पूछ लें। सो मेरी साइड से डन है गुरजीत जी, तो आप देख सकते थैंक यू तरुण सर, आपका काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन था। आप स्कैनर्स के लिंक्स एक बार ग्रुप में ज़रूर हैं। डालिएगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, जो सब लोग उसको यूज़ कर पाएँ। बिल्कुल। ठीक है, एंड थैंक यू मेरे को थोड़ा सा टाइम देने के लिए। मेरा शुगर लेवल भी थोड़ा ठीक है, हाँ, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंटिन्यू द सेशन। ओके। एक मिनट, हाँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? कैन एनीबडी कंफर्म ऑन द चैट? यस यस। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली एक या दो स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता था जो आप अपने एक्टिव ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मैं आवाज़ भी ओके है, राइट? तो दी स्ट्रैटेजीज आर बेसिकली फॉर योर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, जो आपको छोटा छोटा रिटर्न देगी। इसमें कोई ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज नहीं है। वन इज़ योर गैप स्ट्रैटेजी। ये जैसा कि चेतन जी ने भी दिखाया था, मैं इसमें वॉल्यूम को अभी नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ जान करके, बिकॉज कोई कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता मैं। नो, दिस इज़ द चार्ट ऑफ IRCTC। अगर मैं इसको ये बार चार्ट कर देता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ दिखता है कि ये जो बार मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये वाला बार, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट? ये दो बार्स अगर आप देखते हैं तो ये पिछले दिन के हाई से ऊपर खुले हैं, यानी कि गैप अप खुले हैं, राइट? अगर मैं इसका ओपनिंग प्राइस देखता हूँ विच इज़ 3330, और पिछले दिन का मैं अगर हाई प्राइस देखता हूँ विच इज़ 3305, तो ये जो बार्स हैं, ये वाले बार्स आपके गैप अप खुले हैं। और सेम डे के अंदर, सिंस ये डेली चार्ट है, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा, दोनों ही केस में सेम डे के अंदर वो बार ने ये जो गैप क्रिएट किया है, इस गैप को फिल कर लिया है। अभी तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब ये स्टॉक इतना हाई राइजिंग ट्रेंड में जा रहा है, तो ये डेफिनेटली RS पॉजिटिव स्टॉक है, उसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो दो दो केसेस हैं, दीज आर व्हेन यू ओपन अप हायर देन द प्रीवियस हाई, और वो सेम डे में वो बार को जो गैप क्रिएट कर रहा है वो कवर कर जाए। ये सिनेरियो जब आपके एक राइजिंग स्टॉक में आएगा, जहाँ पर आपका RS पॉजिटिव स्टॉक है, तो ये आपके एक इंट्राडे बेसिस के लिए एक सेल हो सकता है, अगर कोई लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजीज करते हैं तो। बेसिकली मैं ये चीज़ पर्सनली नहीं करता हूँ, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज दे आर मैनी पार्टिसिपेंट्स हु आर एक्टिव ट्रेडर्स ऑल्सो, राइट? So if you sell on the high of previous day, which is this 3317, you could get this small move in the market, you could get this जो भी percentage points है, small move in the markets, and sometimes these trends will give you a downfall for coming few days,
अनदर एग्जांपल इन IRCTC अगेन, बट ये चीज़ तब काम करेगी जब आप एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये देखिए। हालांकि आप इस स्टॉक को शायद शॉर्ट नहीं कर सकते, आई एम नॉट टू श्योर ये फ्यूचर में है कि नहीं है। अगेन द ओपनिंग ऑफ दिस बार वाज हायर देन द हाई ऑफ लास्ट बार, और यहाँ पर अगर आप इसको सेल करते हैं तो यू गेट दिस बिग डाउन मूव इन द मार्केट इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ स्ट्रॉन्ग इन द ट्रेंड। नाउ दीज थिंग्स वर्क बोथ वेज, दैट इज माई सेल पॉइंट, एंड सिमिलरली दिस इज द बाय पॉइंट। यहाँ पर क्या हुआ है, मेरा ओपनिंग ऑफ दिस बार इज लोअर देन द लो ऑफ लास्ट इमीडिएट बार। now दिस स्ट्रैटेजी आप इसको चाहे वीकली में यूज़ करें, चाहे डेली में यूज़ करें, चाहे मंथली में यूज़ करें, हर जगह ये चीज़ काम करेगी यहाँ। और मेरे का बाइंग पॉइंट यहाँ कहाँ बनता है इस केस में 1602 पे, राइट। दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रैटेजी, दिस इज कॉल्ड ऊप सेल। एंड गैप्स को कैसे ट्रेड करना है, अब जैसे यहाँ पर ये गैप बना है, पर ये गैप ने इसको आके कवर नहीं किया है। दिस इज़ वन स्मॉल थिंग। अनदर स्मॉल थिंग जो गैप्स को देख के हम लोग डर जाते हैं आर दीज टाइप ऑफ गैप्स विच आर रन अवे गैप्स। रन अवे गैप्स जनरली कब आएंगे, जब आपका कोई फंडामेंटल्स के अंदर कुछ कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, या कंपनी ने कुछ ऐसी न्यूज़ अनाउंस करी होगी जिससे मार्केट में एक्साइटमेंट होगा और रन अवे गैप आएगा। ऐसा रन अवे गैप को देख के ट्रेडर अक्सर डर जाता है कि यार मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप अप कर गया है, अगर मैंने इस कंसोलिडेशन को देख के यहाँ पर अपना स्टॉक में एंट्री लिया है तो मैं यहाँ पे 10-20% 25% जो भी उसको मिल रहा है वो लेके वो निकल जाए। ऐसे रन अवे गैप का मतलब होता है, रन अवे गैप मीन्स इस गैप से पहले एक अच्छा प्राइस एक्शन है। ऐसे रन अवे गैप का मतलब होता है कि आगे चल के 6 महीने साल भर में आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिलने वाला है, जो कि ये सिनेरियो बार बार देखने को मिलता है। दिस इज सुवीन फार्मा, सेम थिंग हैपेंड ओवर ईयर इन अवंती फीड्स, राइट। ये वीकली चार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये डेली चार्ट नहीं है। सेम थिंग हैपेंड ओवर इन अवंती फीड्स, उसके पहले ये अप ट्रेंड चलता आ रहा था, दिस वाज अ रन अवे गैप। एक बार नहीं, ये अवंती फीड्स में सेकंड टाइम यहाँ पर वो सेम चीज़ हुई थी। और यहाँ पर दोनों ही केसेस में कंपनी के जो अर्निंग्स थे, जो फंडामेंटल्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए थे। अगर मैं इसमें वॉल्यूम को यहाँ ऐड कर लेता हूँ तो अगर आप देखेंगे ये जो रन अवे गैप था ये वीकली है, पर ये डाउन वीक था, और यहाँ पर सेलिंग वॉल्यूम है। बाकी चेतन सर ने आपको सिखाया कैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप इस वॉल्यूम को एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज अ रन अवे गैप ओवर ईयर, एंड सिमिलरली दिस वाज अ रन अवे गैप ओवर ईयर। सो जब भी आपको ये ऐसा एक रन अवे गैप मिले, अगर थोड़ा सा भी आप फंडामेंटल समझते हैं तो जाके उसके अर्निंग्स या लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, राइट। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ गैप्स विच यू कैन मेक मनी। ये मैंने एक वीकली का एग्जांपल लिया और एक मैंने डेली चार्ट का एग्जांपल लिया था, ये आपके IRCTC के चार्ट में। नो अगेन दिस इज निफ्टी का चार्ट। बहुत सारे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी करते हैं, सेम इज द स्टडी। दिस इज माई ओपनिंग अबव द प्रीवियस डे हाई, मैंने एरो मार्क करके रखा है, और अगले 3 दिन के लिए निफ्टी के अंदर ये फॉल था। और 3 दिन के बाद अगर आप ये चार्ट जूम करता हूँ, देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर ये बाइंग पॉइंट था, राइट। दीज आर ऊप्स बाइंग एंड सेल। एक चीज़ तो ये होगी इसको यूज़ करने के लिए, दूसरा स्ट्रैटेजी इसको ये होगा जिस दिन आपका ये ऊप्स सेल बनेगा, जो भी कैंडल उस ऊप्स कैंडल को ब्रेक करेगी ये बार, तो दिस इज ऑल्सो योर बॉय पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ऊप्स फेलियर। बेसिकली ये लैरी जो है उसकी स्ट्रैटेजीज हैं जो वो अपने ट्रेडिंग में यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये बार दिख रहा है आपको, इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो पिछले दिन के हाई से ऊपर है, ये ऊप सेल है, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। जिस दिन भी ये बार यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से नेक्स्ट अपमूव स्टार्ट हो गया। लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर निफ्टी के अंदर ऊप्स था, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ये ऊप्स था। अगर निफ्टी 17792 के ऊपर क्रॉस कर जाती है आने वाले 4-5 दिन में या जो भी टाइम फ्रेम में, तो आपको एक अच्छी तेज़ी और देखने को मिल सकती है, राइट। गाइज ज़्यादा लंबा तो नहीं ले पाऊंगा सेशन, बिकॉज आई हैव सम इश्यूज विद माई हेल्थ अगेन विच आई हैव मेंशन इन द ग्रुप। सो दिस वाज वन थिंग विच शॉर्ट थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, and I hope that is useful. Now, if anybody has any questions for Tarun sir and Chetan sir, please do ask in the chat box so they can answer. Thank you for the session, Gurjeev. रन अवे गैप आप दोनों में ही ले सकते हैं, वीकली में भी और डेली में भी।
or if you want, we can take voice call in the group also, right? Because it's already, I think, 1 to 2 hours which the meeting has elapsed. Not been able to talk because since my sugar has gone down and up, I'm basically shivering right now. So let's conclude and do a voice call in the group, right? Take care of your health, Gurji ji. Thank you so much for the session. चेतन जी, आपको क्लोज करना पड़ेगा since you are the host. Okay, sure. Please stop I'll the be recording. closing. Please stop the recording first. Sure. Okay, thank you.